Very good morning to all of you. Good morning, sir. Yes, on behalf of Alumni Cell and Faculty of Commerce, Rabindranath Tagore University, Bhopal, I, Abhishek Shruti, Head of the Department Training and Placement and Convener, Alumni Cell, Rabindranath Tagore University, welcomes you all on this very first virtual alumni interaction program jointly organized by Faculty of Commerce and Alumni Cell, Rabindranath Tagore University. The agenda of today's program is to establishing the professional connect with the alumni of the university for the betterment of the existing students and also for helping the alumni in their career. We all know alumni are the important stakeholder of every university and the institute, and they played an important role to guide the existing student of the university. And alumni cell can also support the alumni also in their career. So to start this program officially, I will introduce all the guests of today's event. So today we have Dr. Neetu Paliwal ma'am, President Alumni Association and Dean Faculty of Science with us. So I welcome you ma'am. तारिका प्लीज आप अपना माइक जो है वो म्यूट कर लो. Yes, I request everyone kindly mute yourself. So I welcome Dr. Neetu Paliwal ma'am on this platform. And we also have Dean Faculty of Commerce, Dr. Deepti Maheshwari ma'am. I welcome you, ma'am. Thank you, sir. Yes, and we also have Head of Department, Faculty of Commerce, Dr. Basanti. Welcome you, ma'am. And I also welcome all the faculty from the Faculty of Commerce, and I also welcome all the alumni who are joining, who are already joined in this program, and soon be joining this program. So, first I request Dr. Neetu Paliwal ma'am for the welcome address. So over to you, ma'am. मैडम आपकी वॉइस नहीं आ रही है. हेलो. यस यू आर ऑडिबल मैम. स्टार्ट करें. ओके राइट. अभी आ रही है ना आवाज? यस मैम. ओके. थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था एक्चुअली, लैपटॉप में कुछ प्रॉब्लम हुआ है, देन आई जॉइंड मोबाइल. नो प्रॉब्लम मैम. ठीक है. कुछ स्टूडेंट मुझे दिख रहे हैं और मैं एक छोटी सी शायरी के साथ अपनी शुरुआत करती हूँ हमेशा, और उसी तरीके से कर रही हूँ कि काम करो ऐसे की पहचान बन जाए, काम करो ऐसे की पहचान बन जाए, चलो ऐसे की निशान बन जाए, अरे जिंदगी तो हर किसी को काट लेना है, अगर दम हो तो जियो ऐसे की मिसाल बन जाए. Thank you. Good morning to all. I, Dr. Neetu Paliwal, Dean Faculty of Science, President Alumni. On behalf of RNTU family, I would like to welcome to TNP Head and Convener of this program, Alumni Cell, Abhishek sir. Sure, thank you. I would like to welcome Dean Dr. Deepti Maheshwari. Thank you, ma'am. I would like to welcome to HOD Matthew ma'am. शायद मैम है नहीं. और मैं वेलकम करती हूँ जो एल्यूमिनाई कोऑर्डिनेटर्स हैं, दो हमारे कोऑर्डिनेटर भी हैं इसमें, सारी फैकल्टी मेंबर्स और पूरे कॉमर्स डिपार्टमेंट में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं. आई हार्टी वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स फॉर टुडेज मीट. इट इज़ वेरी प्राउड मोमेंट टू वेलकम यू ऑल. सभी का बहुत बहुत स्वागत है बच्चों. और मुझे अंकित दिख रहा था, अभी अंकित थोड़ा सा कहीं चला गया है. अंकित नहीं दिख रहा है. और श्रेया दिख रही है मुझे. श्रेया के साथ मुझे अलंकृता भी दिखी हुई है. कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको मैं जानती हूँ बहुत अच्छे से. सभी का बच्चों बहुत बहुत स्वागत है. और अगर मैं बात करूँ तो कुछ पुरानी यादें हैं. हमने एक बिल्डिंग से शुरुआत की थी और आज हम काफ़ी सारे कोर्स लिए हुए बहुत बड़े कैंपस में बैठे हुए हैं. जैसे कि सभी स्टूडेंट जानते हैं कि हमारी जो यूनिवर्सिटी है, विनय भी दिख रहा है. हेलो विनय. सत्यम भी है. हेलो सत्यम. गुड मॉर्निंग मैम. ऐसे मुझे बीच में दिख रहे हैं जिनको मैं एकदम से मुझे ध्यान आ रहा है. काफी बड़े हो चुके हैं लेकिन बहुत खुशी हो रही है बेटा आप सभी को देखकर, क्योंकि कुछ बच्चों ने मुझसे कैंटीन में डांट खाई है. कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो कल्चरल जब एक्टिविटी होती थी तो वो ऑडिटोरियम में आकर बैठ जाते थे, चुपचाप से बैठे रहते थे. फिर हम कहते थे जो केवल पार्टिसिपेट कर रहे हैं केवल वो बैठेंगे, बाकी के सारे स्टूडेंट चले जाएं ना. और मैं फ्लाइंग स्क्वाड में भी आती थी तो वहाँ भी काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होते थे जो मुझे देखते थे, कई मुझे परेशान भी करते थे, कई मुझसे परेशान भी होते थे. तो बहुत सारी ऐसी यादें जुड़ी हुई हैं
और आज सभी को देखकर बेटा बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि कहा जाए तो मैनेजमेंट कॉमर्स डिपार्टमेंट जो रहा है वो शुरू से ही यूनिवर्सिटी की जान रहा है। मैडम ये गलत नहीं होगा कहने के लिए, क्योंकि आपके बच्चों का बहुत ज्यादा पार्टिसिपेशन, कोई भी कल्चरल एक्टिविटी हो, स्पोर्ट्स की एक्टिविटी हो, यूनिवर्सिटी में कोई भी एक्टिविटी क्यों ना हो, और चाहे हमारा AIU क्यों ना हो, इन सभी में बच्चों ने बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट किया है और बहुत गौरव यूनिवर्सिटी को दिलाया है। बच्चे ज्यादा से ज्यादा जीत कर आए हैं। हाँ जी मैम, ये बिल्कुल बहुत बड़ी बात है कि इन बच्चों ने हमारी यूनिवर्सिटी के लिए बहुत कुछ किया है, और इनकी उपलब्धियों और विकास के भविष्य के लिए मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं सभी के लिए, कि मतलब ये बच्चे और आगे बढ़ें और आगे जाके और उन्नति करें। इन्हीं के साथ ही मैं अपने शब्दों को विराम दूंगी। एक और शायरी छोटी सी और मुझे बनती है तो मैं वो और बोल देती हूँ। काम करो ऐसे की पहचान बन जाए, काम करो ऐसे की पहचान बन जाए, चलो ऐसे की निशान बन जाए, जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, अगर दम हो तो जियो ऐसे की मिसाल बन जाए। आप सभी बच्चे मिसाल बन जाएंगे, इसके लिए मैं बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ। आप सभी वैक्सीन लगवाएं, सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। तो थैंक यू डॉक्टर नीतू पालीवाल मैम फॉर द वेलकम एड्रेस। और आपकी शायरी से ही हम लोगों ने स्टार्ट करा एंड काफ़ी अच्छा हमने स्टार्ट और वेलकम किया है सभी एलुमनाइज का। सो नाउ आई रिक्वेस्ट डॉक्टर दीप्ति महेश मैम फॉर द वेलकम एड्रेस। सो मैम ओवर टू यू। Thank you, Abhishek sir. First of all, good morning everyone. I think Good morning, ma'am. mic खोलकर आप सब good morning एक बार जरूर। Good morning, ma'am. Very good morning, ma'am. Good morning. Even I request Deepti ma'am, even I request if possible everyone can like on the camera also. Please on your camera, So please. we can see everyone. Everyone. Please on your camera. अरे वाह क्या बात है, बहुत अच्छे लग रहे हो सब लोग। पंखुड़ी कैमरा ऑन करो। अंकित, प्राची, मीरा, प्लीज। ऋषभ कैमरा ऑन रखो। Yes, ma'am. Please. Now, good morning, everyone. With Very great good morning, ma'am. pleasure and great moment for me, I welcome you all to this auspicious day, alumni interaction of Faculty of Commerce, Rabindranath Tagore University. This day is very important to all my dear students, because with this day it provides an opportunity to meet everyone. बिल्कुल मैं मान रही हूँ इस बार हम वर्चुअली मिले हैं, वर्चुअली हम सबकी मुलाकात हो रही है, लेकिन दिस इज द ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू ऑल ऑफ यू। एक दूसरा क्या कर रहा है, किस तरह से हमारी यूनिवर्सिटी से जो हमारे पास आउट बैच है वो क्या कर रहे हैं, क्या हमें आगे करना चाहिए, उनकी जर्नी क्या रही, वो जब अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं तो नेचुरल है जो उसके बाद वाले बैच है उनको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आई टॉक डाउन एवरीवन, बहुत सारे बच्चों से मेरी बात हुई है, मोस्ट प्रॉब्ली सभी से हुई है, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि कुछ बच्चे कुछ अलग अपना वेंचर खोल के बैठे हैं, कुछ अपनी किसी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत अच्छी पोस्ट पर हैं। एक्चुअली इट इज द ग्रेट प्लेजर आवर यूनिवर्सिटी एंड आवर फैकल्टी एज अ टीचर मैं जरूर बोलूंगी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं जब अपने बच्चों को इस मुकाम पर देख रही हूँ तो एक अलग सी फीलिंग मेरे को मतलब हो रही है, और मैं उसको शायद एक्सप्रेस भी नहीं कर सकती कि वो फीलिंग किस तरीके की है। बट मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आपके साथ में जो और हमारे यहाँ के जूनियर्स जुड़े हैं उन सबको आप अपनी बात रखें, उन सबसे अपनी बात शेयर करें। जब आप लाइफ में जिस मुकाम को आप चाहते हैं उस मुकाम पर जब आप पहुंचे तो हम सबको एक अलग सा प्लेजर, एक अलग सा ऑनर महसूस होता है कि हमारे बच्चे देखो आज कहाँ पर हैं। तो एक टीचर के लाइफ में एज अ टीचर मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आप सबसे जुड़ाव मेरा एज अ टीचर सबसे पहले है, बाद में मैं इस फैकल्टी की HOD या डीन रही, और एक अलग सा वो होता है, एक अलग सा अटैचमेंट रहता है और बहुत अच्छा लगता है कि जब हमारे बच्चे कहीं कहीं इस तरीके से पहुंच जाते हैं। तो वंस अगेन आई वेलकम्स यू ऑल एंड जैसा कि मैम ने शुरुआत कर दी है मिसालों की, तो एक छोटी सी शायरी मैं भी अपनी रखूंगी जिससे हम इस सेल को आगे ले जा पाए, मतलब अपनी बात को आगे बढ़ा पाए। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसे बनाया आशियाना, पूछा चिड़िया से कैसे बनाया आशियाना, बोली
भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। सो वंस अगेन आप इसी ऊंचाइयों पर और आगे जाएं, हमारे साथ बने रहें। तो थैंक यू सो मच, आप सब लोग आज इस वर्चुअल इंटरेक्शन मीट में जुड़े। डेफिनेटली हम लोग आगे मेरी अभिषेक सर से ये रिक्वेस्ट भी है कि हम लोग एक बार अपने फिजिकली मीट भी रखेंगे अपने कैंपस के अंदर, जिससे आप लोग देखेंगे कि जब आप लोग आए थे तब यूनिवर्सिटी क्या थी और आज यूनिवर्सिटी क्या है। और आप सब लोग जब उससे जुड़ेंगे तो और नई नई चीजें हमारे बच्चों को सीखने को मिलेंगी, जो आपके जूनियर बैच आ रहे हैं उनको सीखने को मिलेगी, ये मैं आशा करती हूँ। और इसी के साथ में मैं थैंक यू बोलती हूँ अभिषेक सर को कि उन्होंने इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया और इस वर्चुअल मीट को रखा। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच डॉक्टर दीप्ति माहेश्वरी मैम फॉर द वेलकम एड्रेस। और एक 10 मिनट मैं लूंगा सभी एलुमनाइज के साथ। इट इज़ अ काइंड ऑफ इनफॉर्मल डिस्कशन विद ऑल ऑफ यू, ताकि मैं आप लोगों को सभी को बता पाऊँ कि एलुमनाई सेल अभी तक क्या कर पाया, व्हाट इज आवर फ्यूचर प्लानिंग। सो एक साल पहले की बात है, जब हमारी चांसलर सर जो कि संतोष चौबे सर हैं हमारे, उनके साथ एक डिस्कशन हुआ। तो डिस्कशन में कई सारे मुद्दों पे बात हुई एंड देन वी डिसाइड कि नहीं, हमको एक एलुमनाई सेल जो कि एक मतलब डेडिकेटेड सेंटर होना चाहिए जहाँ पे हमारा हर एक यूनिवर्सिटी का एलुमनाई आके कनेक्ट डेवलप कर पाए और वो हमारे साथ जुड़े। तो आज से एक सवा साल पहले इस एक्टिविटी की स्टार्ट हुई थी और हम लोगों ने एक डेडिकेटेड एलुमनाई सेल यूनिवर्सिटी में डेवलप करा। और तब से लेके आज तक आई एम हैप्पी टू शेयर विद ऑल ऑफ यू के अराउंड 300 प्लस स्टूडेंट हमारे इस नेटवर्क से कनेक्ट हो गए हैं एंड दे ऑल आर फ्रॉम इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, इवन फ्यू आर फ्रॉम कॉमर्स ऑल्सो, सो कुछ एग्रीकल्चर के हैं। तो सभी डिपार्टमेंट से एलुमनाई हमारे साथ जुड़ गए। कुछ इम्पोर्टेंट एक्टिविटी जो कि हम लोगों ने प्लान करी थी जनवरी ऑनवर्ड, क्योंकि अभी बिकॉज कोविड चलता रहा तो हम लोग कुछ फिजिकल एक्टिविटी कैंपस में नहीं कर पाए। सो हम लोगों ने कई सारे वर्चुअल एक्टिविटीज इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, इवन साइंस के साथ स्टार्ट करी एंड टुडे वी आर ऑर्गेनाइजिंग दिस वर्चुअल इंटरेक्शन प्रोग्राम विद द एलुमनाई ऑफ कॉमर्स। सो इस तरह की एक्टिविटीज रही और 300 प्लस, जैसा मैंने आपको बताया, ये एलुमनाई आज तक हमारे नेटवर्क में जुड़ गए। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि मैं बताना चाहता हूँ, क्यों हम लोग एलुमनाई पे इतना फोकस कर रहे हैं, व्हाट इज द नीड ऑफ एलुमनाई एंड द रेगुलर इंटरेक्शन एंड द रेगुलर एक्टिविटी। सो अभी जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट हैं, जैसे मैं बेसिकली आई एम हेडिंग द डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑल्सो। सो जब हम लोग कंपनीज से बात करते हैं और कई सारे डिस्कशन उनके साथ होते हैं रिगार्डिंग द ट्रेनिंग, इंटर्नशिप एंड द प्लेसमेंट्स, सो एक एलुमनाई का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल उसमें निकल के आता है। जब इंडस्ट्री हमसे पूछती है कि भाई आपका एलुमनाई कहाँ पर है और क्या कर रहा है, सो कुछ बच्चे तो हमारे कनेक्ट में हैं तो हम उनको बता देते हैं, लेकिन कई सारी इंडस्ट्री के लोग ऐसे भी बोलते हैं कि भाई आपके यहाँ के एलुमनाई हमारे यहाँ पे अभी भी जॉब कर रहे हैं और हम जानते हैं कि दे आर लाइक गिविंग गुड परफॉर्मेंस। सो जब इस तरह का पॉजिटिव फीडबैक इंडस्ट्री से मिलता है और एक हमेशा एक चीज निकल के आती है कि भाई क्यों ना एलुमनाई हमारे जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट है उनका एक मेंटर बन जाए। सो एक मेंटरशिप के लिए हम लोग हमेशा एक अच्छे एलुमनाई की तलाश में रहते हैं। जैसे कि आप लोग कॉमर्स से हैं तो हम लोग हमेशा चाहेंगे कि भाई थ्रू एलुमनाई सेल आप लोग वापस यूनिवर्सिटी में आए एंड यू मेंटर ऑल द एग्जिस्टिंग स्टूडेंट और उनको बताएं कि भाई क्या क्या चैलेंजेस हैं आज के मार्केट में, कैसे वो एक अच्छी जॉब इंडस्ट्री में पा सकते हैं, और इवन अगर वो एक स्टार्टअप के साइड से भी सोच रहे हैं तो कैसे वो अपना खुद का एक वेंचर स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा कई सारे बेनिफिट एलुमनाइज के लिए भी होते हैं, क्योंकि आप लोग बहुत एक इनिशियल स्टेज में हैं अपने करियर के। अभी आपने 2 साल, 3 साल, 4 साल इंडस्ट्री में गुजारे हैं, लेकिन आने वाला 30 या 35 साल आपको इंडस्ट्री में गुजारना है। भले ही आप जॉब कर रहे हैं, आपका खुद का एक सेल्फ बिजनेस है, आप एक स्टार्टअप में काम कर रहे हैं, किसी भी तरह का अगर आप एक प्रोफेशनल कैरियर मेंटेन करते हैं तो आने वाले 30 या 35 साल आपको जो है इस इंडस्ट्री में, इस मार्केट में गुजारने हैं। सो जहाँ तक मैं समझ पाता हूँ, क्योंकि मैं भी अपने एक एलुमनाई नेटवर्क से जुड़ा हुआ हूँ जहाँ से मैंने इंस्टीट्यूशन से अपना ग्रेजुएशन और इवन पीजी करा है। सो एलुमनाई कहीं ना कहीं जो एग्जिस्टिंग एलुमनाइज होते हैं उस नेटवर्क में उनको भी काफ़ी सपोर्ट करता है। लेट सपोज एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूँ कि अगर कोई कॉमर्स का कैंडिडेट भोपाल में है एंड ही और शी वांट टू रिलोकेट टू दिल्ली और बेंगलोर, सो जो भी उसके एलुमनाई कनेक्ट के स्टूडेंट है, वो हो सकता है बैचमेट हो सकता है सीनियर हो सकता हो जूनियर हो, लेकिन वो एक पास आउट होने के बाद एक इंडस्ट्री में अच्छा एक रिलेशन मेंटेन करते हैं, तो कहीं ना कहीं रिलोकेशन अगर कभी आपको करना है इन फ्यूचर, या अभी कोविड का टाइम चल रहा है, कई सारे ऐसे भी स्टूडेंट मेरे पास आए जिनको बीच में कुछ प्रॉब्लम हुई, उनकी जॉब चली गई,
तो ये एलुमनाई नेटवर्क कहीं ना कहीं एग्जिस्टिंग जो भी मेंबर होते हैं उसको हेल्प करता है। मतलब वो आप मान के चलिए आज अगर आप इस नेटवर्क को ज्वाइन करते हैं तो अगले 30-35 साल आप कम से कम नहीं तो 300, 400, 500 लोगों से जुड़ जाएंगे जो पूरे पैन इंडिया में जो है डिस्ट्रीब्यूटेड रहेंगे। और अगर आप भोपाल में सेटल हैं, अगर आप दिल्ली या बेंगलोर या किसी भी XYZ सिटी में सेटल है और आपको लगता है कि भाई मेरे को रिलोकेट करना है या मेरा किसी और कोई काम वहाँ पे इंडस्ट्री में है, तो आप ये नेटवर्क के थ्रू जो उसको इजीली करवा सकते हैं। कुछ और भी एक्टिविटीज के थ्रू आप लोग यूनिवर्सिटी से जुड़ सकते हैं। जैसे हम थ्रू आउट ईयर जो है बच्चों के लिए वर्कशॉप्स, वेबिनार, इवन एक्सपर्ट टॉक्स वगैरह कराते हैं। आप ऑलरेडी 3-4 साल हो चुके हैं आप लोगों का, कुछ बच्चों को ज्यादा भी हो चुका होगा। सो आप लोग अगर चाहें तो यूनिवर्सिटी के साथ जो इन सारी एक्टिविटी में जुड़ सकते हैं ताकि आप लोग मेंटरिंग कर पाएं जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट हैं। सो ये कुछ एक्टिविटी होती है और इसके बाद हम लोग जो है चलते हुए धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ेंगे और व्हेन वी थिंक कि भाई अभी 100 इवन 200 प्लस बच्चा हमारा कॉमर्स से जुड़ चुका है इस नेटवर्क में, सो वी विल स्टार्ट द सिटी वाइज चैप्टर ऑल्सो। आज हमारे पास भोपाल में अगर 50-60 बच्चों का एक ग्रुप बन जाता है या बैंगलोर या दिल्ली या किसी भी सिटी में अगर एक ग्रुप बन जाता है स्टूडेंट का, सो वी विल स्टार्ट सिटी वाइज चैप्टर एट दैट लोकेशन और सिटी वाइज एक्टिविटीज भी हम लोग स्टार्ट करेंगे। सो ये कुछ एक्टिविटीज है। इसके अलावा कभी अगर कोई एलुमनाई 3-4 साल इंडस्ट्री में बिताने के बाद अगर उनको लगता है कि नहीं मुझे अभी एक स्टार्टअप के बारे में सोचना है और मेरे को अपना खुद का एक वेंचर स्टार्ट करना है, सो वी हैव डेडिकेटेड नीति आयोग स्पॉन्सर्ड AIC सेंटर इन द यूनिवर्सिटी। सो आप उसके सपोर्ट से भी जो है आगे बढ़ सकते हैं। सो ये बेसिकली एलुमनाई नेटवर्क एक इस तरह का एक नेटवर्क है जिसमें आपको खुद को डेवलप करना है, अपने आप को खुद को अपने बेनिफिट के बारे में सोचना है, आपको अपने बारे में सोचना है, आपको अपने जूनियर के बारे में सोचना है, सीनियर के बारे में सोचना है और सबकी हेल्प करते हुए आपको इस नेटवर्क को जो स्ट्रांग बनाना है। सो ये कुछ एक्टिविटीज हैं। धीरे धीरे हम लोग आपके साथ और भी जुड़ेंगे और भी एक्टिविटीज करेंगे। कोविड जब खत्म होगा और जब फिजिकल एक्टिविटीज स्टार्ट होंगी सो वी विल इनवाइट यू इन द कैंपस ऑल्सो और धीरे धीरे के इस डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे तो काफी सारी चीजें और काफी सारे एरियाज निकल के आएंगे जहाँ पे हम इस नेटवर्क के थ्रू काफी अच्छा अचीव कर सकते हैं। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं, जैसे मैं कॉमर्स की बात करूं या मैनेजमेंट की बात करूं, आज की डेट में वो स्टूडेंट हमको कैंपस हायरिंग के लिए भी अप्रोच करते हैं। आज वो इस पोजीशन पे अपने इंडस्ट्री एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री में हैं जहाँ पे उनको अथॉरिटी है कि वो अपने जिस इंस्टीट्यूशन से उन्होंने ग्रेजुएशन या PG करा है वो वापस जाएं और अपने ही जूनियर्स को सिलेक्ट करके लेकर आए। सो इस तरह की एक्टिविटीज से हमारे जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट है उनको भी एक जॉब कनेक्ट मिलता है और कहीं ना कहीं जब उनको पता होता है कि भाई उनका सीनियर उस इंडस्ट्री में ऑलरेडी एक सीनियर पोजीशन पे है, तो एक मोटिवेशन हमेशा उनके लिए बना रहता है कि भाई वो एक नई लोकेशन पे जा जरूर है लेकिन कोई सीनियर है उनको जो गाइड करेगा। तो हो सकता है शायद आप लोगों के समय एलुमनाई सेल उतना स्ट्रांग नहीं था, लेकिन आई ट्राई कि आने वाले समय में जो है एलुमनाई सेल उतना स्ट्रांग रहे और जब भी हमारा कैंडिडेट यहाँ से पास आउट होके किसी भी इंडस्ट्री में जाए तो उसको एक सीनियर का सपोर्ट हमेशा मिले और सिमिलर टाइप ऑफ सपोर्ट जो एग्जिस्टिंग एलुमनाई है उनको भी मिलेगा। हो सकता है 5 ईयर के बाद हम लोग कुछ आपको सेकंड प्लेसमेंट्स की अपॉर्चुनिटी भी दें। 5 या 6 साल के बाद एक एक्सपीरियंस के बाद अगर आपको लगता है कि आपको सिर्फ शिफ्ट करना है, किसी दूसरी कंपनी में जाना है, तो आप लोग अगेन TNP को अप्रोच कर सकते हैं या एलुमनाई नेटवर्क को अप्रोच कर सकते हैं, वहां से भी आपको एक स्विचिंग का ऑप्शन मिल सकता है। तो ये कुछ रेगुलर एक्टिविटीज हैं जो एलुमनाई नेटवर्क करता है और एलुमनाई सेल के अंडर में होती है और जैसे जैसे हम लोग आपके साथ आगे एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होंगे, एक्टिविटीज करेंगे तो और हम लोग इसको जो है समझेंगे। सो ये कुछ चीजें थी मेरे एंड से। आई थिंक दीप्ति मैम मैं अपने एंड से सारी चीजें शेयर कर चुका हूँ, कुछ अगर मिस कर रहा हूँ तो आप बता दें। जी ओके सर, आई थिंक आप सब बच्चों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, खुद से बताएं तो ज्यादा अच्छा है, अदरवाइज मैं नाम लेके बोलूं प्लीज। बेसिकली ये एलुमनाई सेल जो है वो एलुमनाई का ही सेल है ना। आप ही लोगों को इसको रन करना है, आप ही लोग इसके मेंबर होंगे, आप ही लोग इसका अच्छा और बुरा डिसाइड करने वाले हैं फ्यूचर में। सो इट इज ओपन फॉर एवरी पार्टिसिपेंट जो भी आज यहाँ पे अवेलेबल है इस मीटिंग में। सो यू प्लीज स्पीक, जो भी आप बताना चाहते हैं, अपने सक्सेस स्टोरी शेयर करना चाहते हैं या आपको लगता है कि कुछ चैलेंजेस आपने मार्केट में जाके फेस करें आफ्टर योर ग्रेजुएशन और PG, तो हम उस सारे चैलेंज को ध्यान में रखते हुए जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट है उनके लिए कुछ बेहतर कर पाएंगे। आई थिंक सर जो हमारे सबसे पहले एलुमनाई हैं, मैं आपका इंटरेक्शन भी उन लोगों से कराना चाहूंगी। हमारे MCOM के 2 एलुमनाई अभी यहाँ दिख रहे हैं, प्रदीप तिवारी
और विनय मिश्रा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई शेयर्ड वन इंफॉर्मेशन टू ऑल ऑफ यू कि विनय इस टाइम सीए बन गए हैं। इट्स अ वेरी गुड एंड वेरी गुड प्लेजर फॉर ऑल ऑफ अस कि देखिए आपके सामने हमारे सीनियर बैच किस तरीके से काम कर रहे हैं। प्लस प्रदीप जो है वो उसने अपना बहुत अच्छा वेंचर डाला हुआ है जिसके बारे में वो शेयर करेंगे। मधुसूदन और मनोज जो हमारे सीनियर बैच के स्टूडेंट हैं ये लोग भी बताएंगे और ऋषभ बताएगा कि वेदांता में उसका एक्सपीरियंस किस तरीके का है। और एट प्रेजेंट पंखुड़ी बहुत अच्छी जगह काम कर रही है। मीनवाइल आदित्य और सचिन भी जुड़ रहे हैं तो वो लोग अपने अपने एक्सपीरियंस सर आपके सामने रखेंगे, बताएंगे कि ये लोग इस टाइम क्या कर रहे हैं। इन फ्यूचर अगर ये मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी स्टूडेंट से, अगर आप अपना कोई भी वेंचर ओपन करते हैं या कोई भी काम करते हैं, देयर इज एनी रिक्वायरमेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल हमेशा अपने यूनिवर्सिटी को आप लोग याद रखें। तो ये एक बहुत अच्छा जो प्लेटफॉर्म हम सोच रहे हैं, जस्ट लाइक कि मैं आपके मतलब बच्चों से आप शेयर करें अपनी बात को, बच्चा आपकी बात सुने, आपको किस तरह की रिक्वायरमेंट है वो बच्चों को बताए, बच्चों को ट्रेन भी आप ही को करना है। नाउ यहाँ डुअल रोल है आप लोगों का, जैसे एक टीचर का होता है, ट्रेनिंग भी आप लोगों को करवानी है, साथ में कोशिश करनी है अच्छा प्लेसमेंट आपके जूनियर्स को मिले। आपके यहाँ जैसे और अदर्स रिक्वायरमेंट है तो आप लोग वो हमारे एलुमनाई सेल में तो मैं आई थिंक सर अब बच्चों को हमें प्लेटफॉर्म देना चाहिए, ये लोग भी अपनी अपनी बात रखेंगे और मैं भी सबको सुनना चाहती हूँ। तो स्पेशली सबसे पहले प्रदीप से हम शुरू करेंगे फिर विनय, ठीक है? प्रदीप प्लीज शेयर करेंगे अपनी बात को। आवाज नहीं आ रही प्रदीप अभी आपकी, शायद माइक ऑफ है। प्रदीप माइक ऑफ है, आवाज नहीं आ रही अभी। नहीं आई बेटा, नहीं आ रही है अभी। प्रदीप एक बार फिर से अनम्यूट करो। यस प्रदीप। नहीं आ रही बेटा, वॉइस नहीं आ रही, शायद कनेक्टिविटी में कुछ प्रॉब्लम आ रही है आई थिंक। यू आर कनेक्टेड विद लैपटॉप तो आई थिंक हेडफोन निकाल दो, हेडफोन हटाओगे तब अच्छी तरह से क्लैरिटी आएगी। इफ यू आर कनेक्टेड विद लैपटॉप। नहीं आ रही बेटा, नहीं आ रही। आई थिंक मीनवाइल जब तक प्रदीप कनेक्ट हो रहा है, विनय प्लीज आप अपनी बात को शेयर करें, तब तक वो कोशिश कर रहा है। Okay, ma'am. Yeah, please. Hello. Yeah. I'm audible. Yeah, please. You are audible. Hello. Good morning to all of you. जो पिछले स्टूडेंट्स थे, मेरे साथ के भी थे, मेरे जूनियर्स थे और अभी भी जो पढ़ाई कर रहे हो, उनको मैं उनके फ्यूचर के लिए बेस्ट ऑफ लक बोलता हूँ, क्योंकि मेरी जर्नी थी जो आफ्टर 12th ये यूनिवर्सिटी से ही शुरू हुई। I was blank about my कि आगे आफ्टर दैट 12 क्या होना चाहिए था। आई वॉज श्योर अबाउट दैट कि कुछ IAS समथिंग कुछ करता, लेकिन सिचुएशंस ऐसी थी और मेरा पैशन ऐसा था कि मैं धीरे धीरे IAS को भूल कर सीधे CA की तरफ जाने लगा। ऐसा सब्जेक्ट्स में इतना मेरा इन्वॉल्वमेंट होने लगा कि धीरे धीरे मेरा उसमें ही पैशन बनने लगा। मैं हमेशा दीप्ति मैम के पीछे पड़ रहता था कि मैम इसका मतलब क्या होता है, ये क्या होता है, इसका क्या होता है। आई वॉज एवरी बेसिक जो जानना था वो मैं दीप्ति मैम से भी पूछता था। सारे जितने अपनी बेसिक्स थे, इंग्लिश थी, जितने भी मैथमेटिक्स के इश्यूज थे, सारे मैम और सारे सर जितने थे अवेलेबल, उनको मैं पकड़ता था, उनसे पूछता था। धीरे धीरे 3 साल निकले। आई वॉज ग्रेजुएटेड ऑन 2014। उसके बाद मैंने मनी बना लिया था उस टाइम पे कि
अब करना है तो सीए ही करूंगा, क्योंकि बहुत सारी उस टाइम पर मैंने सारे नॉलेज ग्रैब कर ली थी कि हाउ टू डू, व्हाट टू डू, कितना टाइम लगेगा, क्या उसका कॉस्ट है, क्या उसकी टाइम लिमिट है, क्या उसकी प्रोसीजर्स हैं। इतना सब मैंने इन द मीन वाइल ऑफ ग्रेजुएशन मैंने ग्रैब कर ली थी। इट वाज क्वाइट बेटर एक्सपीरियंस, बट इट वाज स्ट्रगलिंग टू। बहुत स्ट्रगल था। फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव स्टार्टेड विद भोपाल। भोपाल में इधर उधर सीईओ को ढूंढना, उनको पकड़ूं, उनके साथ बैठूं, उनके साथ कुछ भी बात करूं कि सर क्या कैसा करना चाहिए। दे गाइडेड मी अबाउट कि हाउ, अब जो तुम सोच रहे हो वो सही है कि गलत है। राइट अप्रोच उन्होंने भी बताई कि किसी भी सीए को भी पकड़ो, उसके साथ वो तुम्हें थोड़ा सा अच्छा गाइडेंस करेगा। हमसे भी ऊपर सीनियर होते हैं, हम लोग तुम्हारे सीनियर्स हैं, लेकिन हमारे ऊपर भी सीनियर्स होते हैं, वो हमें भी गाइड करते हैं। धीरे धीरे उन्होंने भी बताया कि अगर जहाँ पे भी इश्यूज होते हैं, जहाँ पे भी सब्जेक्ट्स ऑल कहा जाए कि बहुत टफ होते हैं, लेकिन इतने भी नहीं होते कि आप उसको कंप्लीट ना कर पाओ, उस पर पकड़ ना बना पाओ, ऐसे भी नहीं होते। अगर बेसिक्स तुम्हारे अच्छे हैं तो सब कुछ निकल जाएगा। इसीलिए कहता हूँ कि जैसे कि अगर ड्यूरिंग द ग्रेजुएशन अपने बेसिक्स स्ट्रॉन्ग कर लोगे, आगे फ्यूचर तुम्हारा बहुत ही एकदम अच्छा जाएगा, सीमलेस, एकदम बहुत अच्छा जाएगा। यही सारी चीजें जो कॉलेज में मैंने थोड़ी थोड़ी सीखी थी, वो मैंने बाहर जाकर उन सब्जेक्ट्स की भी क्लासेस ली जो मुझे नहीं आती थी, जो मेरे लिए नई थी, बहुत ही नई थी। उसको उसको ग्रैब किया, एग्जाम में बैठा। इन द फर्स्ट टाइम आई वॉज नॉट सक्सीडेड। मैं सही कह रहा हूँ, आई वॉज नॉट सक्सीडेड जस्ट बिकॉज ऑफ कि हे भगवान, इतना इतना टफ क्वेश्चन। मन में बहुत सारी चीजें रहती हैं कि क्या कैसे करना है, कैसा क्वेश्चन पेपर आएगा, हे भगवान, सीए है, सीए है, सीए है। ऐसा नहीं होता। धीरे धीरे अच्छा लगने लगेगा सब्जेक्ट। नेक्स्ट टाइम जब मैंने दिया तो अपने उस गलतियों में वर्कआउट किया कि क्या होना चाहिए था, क्या इन द फर्स्ट स्टेज आई वाज टॉकिंग अबाउट। इसको सीपीटी बोलते हैं, अब तो फाउंडेशन उसको बोलते हैं, पहले मेरे टाइम पे उसको सीपीटी बोलते थे। तो बहुत सारी उसमें फ्लॉस थे, तो उसको मैंने वहां पे कंप्लीट किया, वहां पे उसको मैंने खत्म किया, क्या क्या होना चाहिए। इन द सेकेंड टाइम आई वाज सक्सीडेड। उस टाइम पे ऐसा लगा कि हाँ हाँ हाँ, थोड़ा सा अब धीरे धीरे पकड़ बन रही है। सेकेंड स्टेज इज वॉज बहुत अच्छा था। सेकेंड स्टेज में एकदम अच्छी मेरी क्लासेस गई। क्लासेस इज मस्ट, अगर जहाँ पे सब्जेक्ट की दिक्कत हो। ये सारी चीजें मैंने की, सारे सब्जेक्ट्स धीरे धीरे टाइम लगा कर पढ़े। ये नहीं कि हे भगवान, अटेम्प्ट्स हैं, अटेम्प्ट्स हैं, अटेम्प्ट्स हैं। बहुत मैंने इसमें स्ट्रगलिंग तो किए। बाद में जब आईपीसीसी मेरा क्लियर हुआ इन द फर्स्ट गो, जब मेरा क्लियर हुआ, देन उसके बाद आया मेरा ट्रेनिंग पीरियड जो 3 साल का होता है। अब तो ये आप लोग कैलकुलेट कीजिएगा कि आफ्टर 2014 आई वाज कंप्लीटेड माय सीए इन 2020 दिसंबर। तो इस आप ये समझिए, इस 6 साल में मेरे पास कितना स्ट्रगलिंग होगा। मैं ऑलमोस्ट बताऊं, काला हो गया था बहुत। इतना धूप में दौड़ता था, इतना यहाँ वहां मुझे सीए दौड़ाते थे ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड। इतना दौड़ाते थे कि मैं एक जगह बैठ के पानी भी नहीं पी सकता था, क्योंकि यहाँ जाओ, ये आईटी ये कोर्ट में जाओ, ये इस ट्रिब्यूनल में जाओ, यहाँ पर बैठो, बैठ के ऑफिस में बैठो, पसीना पसीना निकल रहा है, भगवान अब क्या किया जाए, कुछ भी नहीं है, वापस भी नहीं जा सकते। और वो भी बोल रहा है कि बैठे रहो जब तक असेसिंग ऑफिसर नहीं आता, तब तक बैठे रहो। बोले ठीक है, बैठे रहते हैं। इट वॉज अ स्ट्रगलिंग टाइम एंड इट वॉज क्वाइट वेरी गुड एक्सपीरियंस। आप प्रोफेशनल के साथ बैठते हो, आपकी भी ग्रूमिंग होती है, वो भी तुम्हें गाइड करते हैं। मार्केट में कैसे रहना है वो तुम्हें बताएंगे, मार्केट में कैसे बिहेव करना है वो तुम्हें बताएंगे।
मार्केट की नॉलेज कैसी ग्रैब करनी है वो तुम्हें बताएंगे, तुम्हें सामने कैसे इंटरेक्शन करना है वो सारे सीनियर्स बताएंगे, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स बताएंगे अगर आप तुमसे इंटरेक्ट करते हो। यू हैव टू इंटरेक्ट विद प्रोफेशनल्स एंड सीनियर ऑफिशियल्स ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ योर लाइफ टाइम। बहुत अच्छी ग्रूमिंग होगी, बहुत अच्छे तुम्हें नॉलेज मिलेगी। बहुत अच्छा लगता है इन सब चीज़ों में। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी पार्टी में जाना है, किसी फंक्शन में जाना है, अच्छे सूट बूट पहनकर बैठे हैं, अगर कहीं भी बताते हो कि व्हाट यू आर डूइंग, अगर तुम बोलते हो कि यस आई एम परसुइंग सीए, आई एम सीए फाइनल, आई एम इन सीए, आई एम डूइंग सीए, एक इतना सा नाम बस काफी हो जाता है कि सामने वाला तुम्हें इतने में ही जज कर लेगा कि यस यू आर 1 in 100, है ना। इस चीज के लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा, लेकिन दैट स्ट्रगल इज फ्रूटफुल। बहुत अच्छा लगता है, और ये तो होता है कि दैट हार्ड वर्क पेज ऑफ। साथ साथ में विनय, एक्चुअली अदर स्पीकर्स मतलब हमारे बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, अपन सबको सुनेंगे, लेकिन जैसे तुमने बोला है कि स्टार्टिंग में बहुत सारा स्ट्रगल देखना पड़ता है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो नाउ लास्ट ईयर से वी हैव स्टार्टेड अ वन सीरीज आल्सो, इट्स अ ऑनलाइन सीरीज स्पेशली फॉर 11th 12th या ग्रेजुएशन में जो बच्चे हैं, सीएस के लिए, सीए के लिए, बैंक के लिए या अदर जॉब्स के लिए आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है वो अब हमने ऑनलाइन क्लासेस में शुरू किया है। और वी हैव टाई अप विद द अदर ऑर्गेनाइजेशंस आल्सो, जिससे कि बच्चे जो आप लोगों ने परेशानियां झेली हैं वो शायद अभी यंग जनरेशन या जो आने अपकमिंग स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ी कम फेस करनी पड़ेगी, बिकॉज क्योंकि हमको पहले से ही इस चीज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं कि कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है। एक्चुअली सबसे बड़ा ड्रॉबैक पहले यही था, जो मैं बिल्कुल श्रुति सर के आगे एक्सेप्ट भी करती हूँ कि ये हमारा बहुत बड़ा ड्रॉबैक था कि उस टाइम पीरियड में हम इस तरह की चीजें बच्चों को नहीं दे पाते थे। नाउ पैंडेमिक में कुछ अच्छा हुआ हो या नहीं हुआ हो, लेकिन वर्चुअल प्लेटफॉर्म के थ्रू हम बहुत सारे बच्चों को बहुत सारी चीजें बता रहे हैं। लास्ट सेशन हमने इसी के ऊपर बेटा रखा था, स्पेशली 11th 12th या बीकॉम में जो बच्चा था या बीबीए में था या अदर्स में था, जो बच्चा है उसको ये नॉलेज हो कि कौन कौन से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, उनकी प्रिपरेशन किस तरीके से की जानी है, और बच्चे को अगर कहीं कोई डाउट है तो वी विल प्रोवाइड दी पर्टिकुलर नंबर्स ऑल्सो, जिससे कि बच्चा उस चीज पे फोकस कर पाए। जैसे अंकित ने मुझसे एक बार शेयर किया था कि मैम मुझे मास कॉम में जाना है, तो नाउ अंकित को मैं ये बता भी सकती हूँ कि इस साल से हमारा मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ओपन हो चुका है। उसको इन फ्यूचर मास कम्युनिकेशन करना है तो वो बिल्कुल कर सकता है। और इस टाइम मास कम्युनिकेशन में बहुत सारी चीजें विशाखा मैम ऑर्गेनाइज भी कर रहे हैं, करवा भी रहे हैं, तो इट्स अ ओपन। वही हमने बोला कि ये डुअल है, आप लोगों को भी कुछ जानकारी चाहिए बिल्कुल आप हमसे ले सकते हो, हमें कुछ जानकारी चाहिए मार्केट से रिलेटेड तो हम आपसे ले सकते हैं। विनय, अभी नेक्स्ट सेशन, क्योंकि इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी कि अभी जैसे आपने अपनी जर्नी बताई, नेक्स्ट सेशन में 11th 12th के बच्चों के लिए एक और रख रही हूँ, जो सीए की प्रिपरेशन में स्पेशली किन बातों का ध्यान करना है उस पर हम रखेंगे, जिसमें एक सेशन मेरे यहाँ के एलुमनाई बच्चे का होगा जो ये बताएगा, तो इतना लंबा टाइम शायद उन्हें ना लगेगा और साथ साथ में बीकॉम की पैरेलल वो एक अच्छी प्रिपरेशन कर पाएंगे। ये अपन ने इस बार से एक कोशिश की है और ये इंशाल्लाह आगे भी आगे चलती रहेगी और आगे बढ़ती रहेगी। तो यही सोचते हुए नाउ प्रदीप, आई थिंक माइक अब दीप्ति मैम, मैं एक ऐड करना चाहता हूँ बीच में। विनय ने बहुत अच्छी बात बोली है, जो मैं एलुमनाई नेटवर्क में एक्चुअल में देखता हूँ कि क्या होता है। एक रियल टाइम चैलेंज की और स्ट्रगल की बात विनय ने बहुत अच्छे से जो बताई है। सो ये जो एलुमनाई नेटवर्क है एग्जिस्टिंग स्टूडेंट के लिए यही चाहता है, जो हमारे एलुमनाइज हैं वो आके बताएं हमारे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट को कि भाई क्या मार्केट ट्रेंड्स है, किस तरह के चैलेंजेस हैं। देखिए, जब चैलेंज या स्ट्रगल लाइफ में आता है तो दो चीज़ें लाता है, एक मोटिवेशन लाता है, एक डीमोटिवेशन लाता है। और मेजॉरिटी ऑफ कैंडिडेट जो है डीमोटिवेट होकर अपना रास्ता को चेंज कर लेते हैं। सो अगर हम पहले से उनको थोड़ा सा एक अच्छा गाइडेंस, एक अच्छी मेंटरशिप या अच्छा एक डायरेक्शन प्रोवाइड कराएं, सो वो उसको एक्सेप्ट करेंगे पॉजिटिव वे में कि भाई नहीं, टिपिकल तो है, बहुत चैलेंजेस हैं, लेकिन अगर इस चैलेंज को एक्सेप्ट करा और इसमें अच्छे से परफॉर्म करा तो डेफिनेटली लाइफ में कभी पीछे मुड़ के नहीं देखना होगा। सो ये कुछ रियल टाइम एक्सपीरियंस है जो कि एलुमनाई बहुत अच्छे से हमारे स्टूडेंट के साथ शेयर कर सकता है, और एलुमनाई नेटवर्क के थ्रू हम लोग चाहते भी यही है
कि ये सारी चीजें जो वापस आप लोगों ने जो फीस करी है मार्केट में जाने के बाद वो वापस आपके स्टूडेंट को बताई जाए. सो थैंक यू सो मच विनय फॉर शेयरिंग वंडरफुल थिंग विद अस. सो ओवर Thank टू you, यू sir. मैम. यस, ओवर टू यू मैम. Ditya. Pradeep, please. Yes, ma'am. Good morning. Good morning. Yes, Pradeep, you are audible now. Thank you so much. Sorry, मैम, उस समय थोड़ा दिक्कत हो गया था. बाय. थैंक यू पहले सबसे पहले दीप्ति मैम को कि इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया हमें वापस रीयूनियन होने का एक हिसाब से वर्चुअली एक दूसरे को समझने का. और क्या हमने इस लास्ट 5-6 ईयर में 4 ईयर में हमने जो पाया है कुछ खोया है उसमें एक दूसरे के साथ शेयर करने का बेसिस ऑन एक्सपीरियंस एंड नॉलेज. तो मेरी भी स्ट्रगल लाइफ कुछ ऐसी थी विनय के लगभग. बट विनय क्या अपने उसमें डटा रहा कि हाँ मुझे बस अपना ये सीए कंप्लीट करना है. इनिशियल स्टेट में आफ्टर द 12th मैंने भी सीपीटी दिया था बट मैं सेकंड अटेम्प्ट में मैंने क्लियर किया था सीपीटी. उसके बाद आईपीसीसी का जैसे विनय ने बताया कि बहुत लेंदी प्रोसेस होता है, बहुत हैवी बुक्स होते हैं, बल्क ऑफ नॉलेज उसमें चाहिए आपको, सब्जेक्ट के ऊपर अच्छी कमांड चाहिए, आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए उस पर, आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए उस पर. तो और प्लस आपका मोटिवेशन लेवल उस पर हाई होना चाहिए. तो शायद उस समय मेरी एज थोड़ी कम भी थी और मुझे शायद उस टाइम पे इतना मोटिवेशन नहीं मिल पाया. तो इस वजह से मैं वहाँ से डिस्ट्रैक्ट हो गया. जैसा अभिषेक सर भी बोले कि कई बार इंसान डीमोटिवेट होकर अपना रास्ता चेंज कर देता है. तो मैंने भी वही किया. मैं मतलब एक ह्यूमन नेचर के अकॉर्डिंग मैंने उसको अपने चेंज कर दिया. बट मैं अपने ग्रेजुएशन से बना रहा, मैं अपने कॉमर्स लाइन से बना रहा जो मेरी बेस थी. तो मैंने फिर बीकॉम किया. बीकॉम के साथ फिर मैंने जो और स्टूडेंट करते हैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी वाली चीज़ थी कि हाँ भैया वो कर रहे हैं चलो हम भी चल देते हैं. तो उस पर मैंने इतना फोकस नहीं किया. बस फोकस था कि हाँ चलो कोचिंग जाएंगे, सुबह उठ के कोचिंग करेंगे, वहाँ जाएंगे, पेपर लगाएंगे, निकल गया तो ठीक है. कट ऑफ मार्क कभी कभी बहुत ज़्यादा हाई चले जाते थे. तो इस चक्कर में फिर इतना फोकस नहीं था उसमें. फिर आफ्टर बीकॉम ग्रेजुएशन में फिर आईसेक ज्वाइन किया. फिर मैम लोगों के गाइडलाइन में बहुत कुछ सीखा, एकेडमिक्स के बारे में सीखा. पूरा फोकस भी मेरा एकेडमिक में ही था. दीप्ति मैडम ने मुझे इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया था वहाँ यूनिवर्सिटी में कि मैंने वहाँ पे एज अ गेस्ट फैकल्टी मैंने पढ़ाया भी स्टूडेंट्स को टैली. उस टाइम पे जो हमारा मेन फोकस था, मैडम और मेरी जब इस चीज़ पे बात हुई थी तो उन्होंने मुझसे यही कहा था कि प्रदीप हम कैसे प्रैक्टिकली बच्चों को साउंड करें. बुकिश नॉलेज तो ठीक है, इट्स गुड फॉर ऑल, बट कैसे हम प्रैक्टिकली सबको साउंड करें ताकि वो सर्वाइव कर सके मार्केट में. क्योंकि आपका प्रैक्टिकली नॉलेज ही बहुत कुछ होता है. थ्योरेटिकली तो कोई भी रट्टा मार के पास हो सकता है, बट जब तक आप प्रैक्टिकली साउंड नहीं हो उस चीज़ पे तो इट कांट पॉसिबल. तो वही चीज़ पे फोकस किया. तो मैम ने बस मैम से ऐसी डिस्कस हुई तो मैम ने बोला आप टैली थोड़ा स्टार्ट करिए, बच्चों को टैली सिखाइए, क्योंकि टैली एक बेसिक चीज़ है किसी भी अकाउंटेंट के लिए. अगर आप सीए भी कर रहे हैं तो ओरिएंटेशन में आपको टैली सिखाया जाता है. अगर आप नॉर्मल अकाउंटेंट की जॉब भी कर रहे हैं मिनिमम 5-6 हज़ार 10 हज़ार 15 हज़ार या सीए के अंदर आप आर्टिकल भी कर रहे हैं तो आपको टैली मस्ट है. तो मैडम से ऐसे डिस्कस हुआ. मैडम ने बोला तुम पढ़ाओ टैली अगर तुम्हें आता है तो. मैंने बोला बिल्कुल मैम, मैंने तो कोर्स किया ही था, ओरिएंटेशन में भी किया था और ओरिएंटेशन के अलावा भी मैंने किया था ये कोर्स अलग से. तो फिर मैम ने मुझे मौका दिया. उसके बाद एकेडमिक्स में भी शायद मैम को याद होगा, मैम आईआईटी रुड़की में आईआईटी खड़गपुर में एक पेपर रिसर्च पेपर देना था, शायद आपको याद हो. तो मैंने एब्स्ट्रैक्ट बना के दिया था उस पर और पेपर सिलेक्ट भी हुआ था. पेपर सिलेक्ट, बट उस टाइम पे कुछ कॉन्सिक्वेंसेस आ गए थे, कुछ ऐसे दिक्कतें आ गई थी तो वो आगे पेपर हम देने नहीं जा पाए. दिक्कतें आ गई थी, कुछ ऐसी दिक्कतें आई थी. आईआईटी मैडम ने मुझे बहुत मोटिवेट भी किया था कि प्रदीप बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसको मिस मत कर. और उस टाइम पे संगीता मैम भी थी शायद, अभी भी है. हाँ मतलब उस टाइम पे चल रही थी तो उस टाइम पे उन्होंने भी मतलब यानी मोटिवेट किया था, बोले बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है. फिर वहाँ ना जा करके फिर यहाँ सागर कॉलेज में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस था, उसमें भी रिसर्च पेपर बनाए थे, उसमें भी रिसर्च पेपर में प्रेजेंट किए थे. शायद विनय को भी याद होगा, विनय भी साथ में था. तो ऐसे ही एकेडमिक्स का सफर रहा. अपन दोनों ने प्रेजेंट किया था उससे. ऐसे ही एकेडमिक का सफर था. मैडम ने बहुत से
साथ दिया, बहुत गाइडेंस दिया हम लोगों को कि कैसे हमको मतलब मार्केट में सरवाइव करना है। मार्केट में सरवाइव करने का एक बेसिक फंडा ये है कि आपको प्रैक्टिकली होना पड़ेगा सबसे ज़्यादा। आप प्रैक्टिकल होके कैसे चलेंगे, आप सीख तो लेंगे, आपको समझा भी देंगे, लेकिन आपके अंदर मोटिवेशन किस हद तक है कि आप उसको प्रैक्टिकली सरवाइव कर सकें। प्रैक्टिकली कैसे सरवाइव करना है ये आप पे ही है, आपके विल पावर पे है कि आप किस तरीके से उसको झेल सकते हैं। क्योंकि मार्केट में बहुत सी परेशानियां हैं। आज मैं इस पोस्ट पे हूँ, मैं भी जॉब कर रहा था पहले पिछले 5 साल से, लेकिन शायद नहीं जमा मुझे उस हद तक, मुझे नहीं समझ में आया। मेरे को नॉलेज एक बाउंडेशन लग रही थी कि मैं एक सीमित हो गया हूँ, मैं सिर्फ एक कैशियर अकाउंटेंट बन के ही रह जाऊंगा, मुझे ऐसा मन में लगने लग गया था। देन फिर मैंने कोशिश किया, नहीं मुझे इससे बाहर निकलना है, इस ट्रैप से मुझे बाहर निकलना है। तो मैंने ट्रैप से बाहर निकलने के लिए अपने नॉलेज को गेन किया। मैंने यूट्यूब का सहारा लिया, मैंने बुक्स का सहारा लिया, और इसके अलावा भी मैंने अभी यूजीसी नेट पे भी मैं अभी फोकस कर रहा हूँ। साथ ही साथ यूजीसी जेआरएफ नेट एनटीए जेआरएफ में मतलब सिलेक्शन हो जाए, कोशिश तो यही है। बट अभी पॉसिबिलिटी थोड़ी सी दूर है, क्योंकि मेरा अभी थोड़ा सा माइंड है ना, वो अपने बिजनेस के ऊपर थोड़ा ज़्यादा लगा हुआ है, अपने वेंचर पे, कि मैं कैसे उसको एक्सपांड करूं। क्योंकि अभी क्लाइंट भी थोड़े कम है और थोड़ी मनी प्रॉब्लम भी है इस वजह से, बी फ्रैंक। लेकिन स्टार्टिंग में आपको ये सोच के डीमोटिवेट नहीं होना कि भाई हमारे पास पैसे नहीं है, पैसा ही सब कुछ नहीं है। पैसा इज नॉट एवरीथिंग। आपकी विल पावर कितनी अच्छी है, आप कितना अच्छा अपने आप को आगे स्टैंड कर सकते हो अपने आप को, ये एक मेन इम्पॉर्टेंट है। और बस मैं तो यही कहूँगा कि प्रैक्टिकली होके सबसे ज़्यादा आपको सोचना है। जो भी आपका अप्रोच रहेगा वो प्रैक्टिकल अप्रोच ज़्यादा रहेगा, तो ही आप मतलब मार्केट में अच्छे से कामयाब हो पाएंगे। और मार्केट में ही क्या, आप अपने लाइफ में भी कामयाब हो पाएंगे। लाइफ में भी अगर हम प्रैक्टिकली होकर अगर सोचेंगे, प्रैक्टिकली होकर कोई काम करते हैं, तो वो मोर गेनफुल रहेगा इन थ्योरिटिकल। थ्योरी में तो बहुत सी चीज़ें मिल जाएंगी, आप पेपर उठाएंगे सुबह एक सुविचार लिखा हुआ मिल जाएगा आपको पेपर के ऊपर, लेकिन वो पेपर को जब तक हम वो थॉट को हम फॉलो नहीं करेंगे अपनी लाइफ में, तो हम कैसे सक्सीड कर पाएंगे अपनी लाइफ में, है ना। तो बस यही है। बहुत कुछ बातें हैं, अभी बहुत से लोग हैं जिनको मैं तो चाहता हूँ कि और लोगों की बातें भी सुनूं जो अपनी बातें बताऊंगा। मैं मैडम से चाहूंगा कि मैडम इन फ्यूचर कभी हमें वापस से मौका दिया जाए इंटरेक्ट होने का। ये तो पार्ट जर्नी, पहली रिक्वेस्ट रखती है मैंने, है ना। जी, ये तो बस भी हमारी मतलब लाइफ की बहुत छोटी सी यात्रा है जो हमने शेयर किया है। बहुत सी चीजें हैं जो गेन करनी पड़ती है अपने लाइफ में। कई बार गिर के उठना पड़ता है, कई बार लेट के उठना पड़ता है, लेकिन उठना जरूर पड़ता है, मेरा ये मानना है। प्रदीप, अभी आप क्या कर रहे हो? सर मैं अपनी खुद की फर्म अकाउंटिंग फर्म चला रहा हूँ एज अ फ्रीलांसर। मैं पार्ट टाइम मतलब जो ज़्यादा बड़ी कंपनीज नहीं है जिनका इतना टर्नओवर नहीं रहता सर, वो अफोर्ड नहीं कर सकते अकाउंटेंट को कहीं कहीं। तो जैसे कोई स्टार्टअप हो गया किसी का बिजनेस, अब वो एकदम से अकाउंटेंट, हैवी अकाउंटेंट या मतलब सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट इनको तो देते नहीं। तो फिर वो मैं डायरेक्टली उनसे कंसल्ट करता हूँ, उनकी अकाउंटिंग, उनका मतलब जीएसटी फाइलिंग, आईटी फाइलिंग, ये सब सर इसकी फाइलिंग का सर देखता हूँ मैं। प्रदीप, मैं आपको एक सजेशन देना चाहूंगा। वी हैव अ डेडिकेटेड एआईसी आरएनटीयू सेंटर इन आवर यूनिवर्सिटी। सो ये क्या है कि स्टार्टअप्स को सपोर्ट करता है ना। अगर आपको, जैसे आपने बताया कि एक्सपेंशन का एक इशू है, तो ये सारी चीज़ों को लेके आप जो है डेफिनेटली आप कभी भी यूनिवर्सिटी में आइए, एआईसी की टीम वहाँ पे अवेलेबल रहती है, और उनसे थोड़ा सा अगर सजेशन और एक कनेक्ट आप डेवलप करेंगे तो डेफिनेटली आई थिंक कि भाई आपको वहाँ से बहुत अच्छा एक रिस्पांस मिलेगा और आप अपने जो है बिजनेस को आगे और एक्सपांड कर पाएंगे। जी सर, थैंक यू सर। यस, तो डेफिनेटली है ना, आप कभी भी आइए यूनिवर्सिटी में और यहाँ पे आके विजिट करिए, और काफ़ी सारे इनपुट्स आपको यहाँ से जो है अटल इंक्यूबेशन सेंटर से मिलेंगे। और हो सकता है कि शायद आप अभी भोपाल लोकल में एफर्ट लगा रहे हैं या मध्य प्रदेश में लगा रहे होंगे, लेकिन थ्रू एआईसी आपको जो है पैन इंडिया प्रेजेंस भी जो है अवेलेबल हो सकती है। तो आप भोपाल में बैठ के अगर मध्य प्रदेश के बाहर भी काम करना चाहते हैं तो वो भी एक पॉसिबिलिटी है। ऑफ कोर्स है ना। तो डेफिनेटली यू वेलकम, है ना, कभी भी आप आइए और आप विजिट करके जाइए ना। बिल्कुल सर, थैंक यू सर। थैंक यू प्रदीप। थैंक यू सर। मनोज हमारे साथ में है। मनोज, आप प्लीज अपनी बात शेयर करें, एंड मधुसूदन ऑल्सो। सबसे पहले तो नमस्कार मैडम,
और सर को भी मेरा नमस्कार। जहाँ अभिषेक सर हैं उनको भी मेरा नमस्कार नमस्कार मनोज, स्वागत है आपका, बताइए। जी जी, सभी बाकी सभी दोस्तों को नमस्कार मेरा। सर मेरा नाम मनोज पाल है और मैं 2017 के बैच में एमकॉम पास आउट हुआ हूँ टैगोर यूनिवर्सिटी से। और मैडम का काफी मार्गदर्शन रहा मेरे साथ, उनका मार्गदर्शन में ही मैंने पास आउट किया है। अभी एज प्रेजेंट सर मैं एक एनजीओ में काम कर रहा हूँ जी। तो एज ए अकाउंटेंट के रूप में पद पर अभी कार्य कर रहे हैं हम। तो हमारा एनजीओ अभी ग्रामीण लेवल पे काम कर रहा है, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट पे और जागरूकता पे, इस टाइप का काम कर रहा है उसमें। सर मेरी आवाज आ रही है? यस मनोज, सुन पा रहे हैं आप? यस सर। तो सर हम लोग अभी एग्रीकल्चर डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं। जैसे तो एसटी वाले लोग हैं ना, आदिवासी समुदाय के लोगों के साथ काम कर रहे हैं हम लोग। तो उसमें अभी हम क्या कर रहे हैं, उनको एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में हम लोग उनका छोटे छोटे किसान हैं वहाँ पे, तो उन लोगों को ग्रुप बनाकर और उन लोगों के लिए हम लोग छोटे छोटे तालाब निर्माण करवा रहे हैं। उनके माध्यम से उनका मतलब एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं। और जहाँ तक हो सके हम उनको ट्रेनिंग भी करवा रहे हैं एग्रीकल्चर पे, नई टेक्निक्स पे। आपने केवीके का नाम सुना होगा, कृषि विज्ञान केंद्र इछावर। हम लोग अभी सीहोर ब्लॉक में काम कर रहे हैं, तो उनसे उनका जुड़ाव कर रहे हैं। और एसएचजी अभी महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप बना रहे हैं, तो उसके माध्यम से हम लोग महिलाओं को जागरूक कर रहे हैं। तो अभी इस टाइप का हमारा एनजीओ का काम है। तो सर मेरा काम तो अभी फाइनेंस में, अकाउंट्स में है। तो मैंने बीकॉम किया था, बीकॉम के बाद मैं यहाँ पे लग गया था। उसके बाद मैं जब बीकॉम किया सर, मैं जूनियर था यहाँ पे, अकाउंट्स में जूनियर था। फिर मैं मैडम के मार्गदर्शन में आया, दीप्ति मैडम के मार्गदर्शन में, फिर उनसे संपर्क करने के बाद मैंने एमकॉम किया वहाँ। तो अभी सीनियर, मतलब 2017 के बाद मैं सीनियर अकाउंटेंट्स के रूप में अभी कार्य कर रहा हूँ यहाँ पे। सर और क्या कुछ पूछना चाहते हैं कोई स्टूडेंट से? बहुत बढ़िया मनोज, है ना। मनोज बस एक इनपुट मैं अपने एंड से देना चाहूंगा, क्योंकि हो सकता है शायद जब आप पास आउट होंगे तब एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट उतना एक्टिवली नहीं होगा, लेकिन वी हैव एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट इन आवर यूनिवर्सिटी आल्सो। और काफी सारे जो है एनजीओ के साथ हम लोग भी जुड़े हुए हैं थ्रू डिफरेंट सीएसआर एक्टिविटी। और अगर आपने आशा का एक नाम सुना हुआ है ना, आशा फॉर सोशल एक्शन फॉर सोशल एडवांसमेंट, तो कल ही हमारी एक उनके साथ बहुत अच्छी एक इंटरेक्शन एक्टिविटी थी। और आप अगर वापस आके एक बार यूनिवर्सिटी में विजिट करेंगे तो काफी सारा कनेक्ट आपको जो है आपके पर्सनल डेवलपमेंट के लिए भी, इवन आपके एनजीओ के डेवलपमेंट के लिए भी मिल पाएगा। जी जी बिल्कुल सर। फ्रॉम द टेक्निकल साइड ऑल्सो, फ्रॉम द बात करेंगे तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी वी कैन वर्क इट आउट। जी जी, क्योंकि आपका जो एनजीओ है वो एग्रीकल्चर रिलेटेड वर्क ही कर रहा है। सो ये बेसिकली क्या फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है क्या? जी हाँ सर। ओके, एफपीओ है। जी जी, एनजीओ है जी। ठीक है मनोज, बहुत बढ़िया। जी जी सर। मधुसूदन सर, अभी अपने मधुसूदन भी हमारे साथ हैं। मधुसूदन, थैंक यू मनोज। मधुसूदन, हेलो, हाँ आ रही है आवाज आपकी, वीडियो भी ऑन करें। मधुसूदन, वीडियो ऑन करें। आई थिंक जब तक मधुसूदन जुड़ते हैं आ गए। हेलो, हाँ आवाज आ रही है? आवाज आ रही है मैम? यस यस, आ रही है, आ रही है। जी मैम, नमस्ते मैम। नमस्कार। नमस्कार सर को भी नमस्कार मैम। हाँ नमस्ते, नमस्ते मधुसूदन, बताइए। जी जी सर, मेरा नाम मधुसूदन है। मैंने 15-16 के आसपास जैसे एमकॉम टैक्सेशन से किया था, जब ये आईसेक यूनिवर्सिटी हुआ करता था। एक्चुअली मैं उस टाइम इंदौर में जॉब करता था एज ए अकाउंटेंट। तो मेरे को बीकॉम मैंने किया हुआ था, मेरे को मास्टर डिग्री करना था टैक्सेशन से। मैंने आईसेक यूनिवर्सिटी का नेट के थ्रू सर्च किया और उसमें एडमिशन लिया। वहाँ से मैंने अपना एमकॉम टैक्सेशन से किया। मैं पहले से ही किसी अकाउंटिंग फील्ड में जाना चाहता था। 12th के बाद मेरे को शायद सीए करने का था कि सीए करना चाहिए, क्योंकि अधिकतर ये सोचते हैं कि कॉमर्स में कोई जो भी लाइन है वो
थोड़ी हाई लेवल की लाइन है, सीए करो, सीएस करो या कॉस्ट अकाउंटेंट का काम करो। नीचे लेवल में या कुछ जो कम है, जिसमें आपका इन्वेस्टमेंट कम हो, ऐसा कोई इसमें लाइन नहीं है। तो फिर मैंने एज ए कंसल्टेंट के लिए मैंने एमकॉम टैक्सेशन से अपना एमकॉम किया है, और अभी मैं ऐसे मेरी एक छोटी सी फर्म है कंसल्टेंसी, जिसमें मैं अकाउंटिंग और टैक्सेशन, जीएसटी वगैरह, इनकम टैक्स का पूरा काम करता हूँ होम टाउन में ब्यावरा में। और मैं लगभग 5-6 साल जॉब किया है एज ए अकाउंटेंट। अब मैं कुछ सीए के साथ टच में होकर अपनी अकाउंटेंसी चलाता हूँ ब्यावरा में। जैसे कि मैं ये स्टूडेंट को ये बताना चाहता हूँ कि अपन जो कॉमर्स स्टूडेंट जो रहता है वो ये सोचता है कि यार अब सीए करेंगे या सीएस करेंगे, इसमें समय ज़्यादा लगेगा। फिर वो कॉमर्स लेता है, फिर कॉमर्स से कहता है कि कॉमर्स में तो कुछ स्कोप ही नहीं है, टीचर ने लाइन टीचिंग में जा नहीं सकते, इधर जॉब मिलेगी तो 15-16 हज़ार की अकाउंटेंसी मिलेगी। जबकि इसमें आप एक प्रोफेशनल का काम कर सकते हैं, आप जीएसटी प्रैक्टिशनर बन सकते हैं। तो जीएसटी में भी प्रोविजन है कि आप जीएसटी प्रैक्टिशनर बन सकते हैं, इनकम टैक्स में भी है, इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर बन सकते हैं, साइड में अपना ये अकाउंटेंसी का काम कर सकते हैं। इसमें अच्छा स्कोप है। जो बड़े बड़े बिजनेस होते हैं वो तो अपने अकाउंट और सीए रख लेते हैं, लेकिन जो छोटे बिजनेस होते हैं वो अपनी ये सर्विस नहीं ले पाते, तो आप उनकी सर्विस ले सकते हैं। इससे आपकी अच्छी इनकम हो जाती है। और थोड़ा नॉलेज ले लें टेली वगैरह का, आप अकाउंटेंसी में है, अकाउंटेंसी काम सीखे, टैक्सेशन किया है, तो इससे अच्छा बेनिफिट मिल जाता है। थैंक यू मधुसूदन सर। अभी अभिषेक सर, अभी इनकी अपनी फर्म है और एज ए कंसल्टेंट ये वर्क करते हैं, तो इन फ्यूचर अपन इनसे कोलैबोरेट कर सकते हैं, स्टूडेंट्स जाके इंटर्नशिप करें उसमें। एंड नाउ ऋषभ विद अस। ऋषभ सिंह। Hello. Hello. Yes, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Good afternoon. Sorry, ma'am. I could not connect in video call. Actually, I'm on duty, but I'll definitely try if possible as soon as I'll connect it, ma'am. It's okay. It's okay. So, good afternoon, everyone, including my seniors as junior as well. I don't know आप मतलब आप लोग कितने लोग हैं जो मेरे से मतलब they know me actually. If I'll say, so first let me introduce myself. This is Rishabh here. I am from Madhya Pradesh only, Rewa district of Madhya Pradesh, and I am pass out batch of 2018 with a BCom, specialized with computer application, and currently I am serving in Vedanta Limited, present at Jharsuguda, Odisha district. So मेरा experience तो बहुत कुछ है, but I'll with the bullet points I'll just जो मेरे highlights हैं that I'll let you know. So basically I was in hostel from 6th to 12th standard, and उसके बाद soon after I have that too in Hyderabad. So soon after I have decided to come to Bhopal to continue my graduation. So in that part of time I was little bit confused with the selecting the colleges and all. So at that point of time I thought of joining at that time इसका नाम ISEC University था, now converted into Rabindranath Tagore University. तो it was near to my home and बहुत सी अपॉर्चुनिटीज मुझे यहाँ पे दिख रही थी। मतलब ये ऐसा नहीं था कि मैं अपने पास्ट को छोड़ के अपने प्रेजेंट में आके, एंड देयर मे बी सम वास्ट डिफरेंस इन इट। तो आई हैव ज्वाइंड इन द ईयर 2015 in BCom with computer application as I said, and then after academics में मेरा इतना फोकस ज़्यादा फ्रेंकली स्पीकिंग इतना था नहीं। एंड अभी जैसे हमारे सीनियर्स विनय सर ने सब लोगों ने इंट्रोड्यूस किया, तो दे वर लाइक ऑल चीज़ें जो थी एकेडमिक्स रिलेटेड, जॉब ओरिएंटेड। तो मेरा ऐसा कुछ स्पेशल वो था नहीं एकेडमिक्स के लिए, बट आई वाज बेसिकली फोकस मेरा जो आउटडोर्स का था, को करिकुलर एक्टिविटीज़ का था, तो आई वाज लिटिल बिट फोकस्ड मोर ऑन इट। तो अब कॉलेज ज्वाइन किया, कॉलेज ज्वाइन करने के बाद आई वाज लाइक एक फ्रेशर की तरह एंट्री हुआ हमारा। एंड हमारे फ्रेंड्स भी दे वर नॉट, मतलब मैं एक्चुअली थोड़ा सा इंट्रोवर्ट हूँ, तो इतना ज़्यादा इंटरेक्शन वगैरह मैं ज़्यादा पसंद नहीं करता था। इवन अपने फैकल्टी के सामने भी मैं आई वॉज फीलिंग शाई टू कमेंट इन फ्रंट ऑफ दैम। बट देन आफ्टर आई हैव ज्वाइंड एनसीसी फ्रॉम द सेम कॉलेज, आई मीन सेम यूनिवर्सिटी, एंड देयर आफ्टर उस टाइम तक तो मेरी कुछ आइडेंटिटी थी नहीं। देन आफ्टर आई हैव ज्वाइंड एनसीसी, और मतलब ऐसा हुआ था कि विद इन अ फर्स्ट ईयर वो एक मेरा अचीवमेंट था दैट आई हैव आई मीन रिप्रेजेंटेड माय
university as well as district as well as state in the national level, that वो होता है न्यू दिल्ली में. So I have represented my college there. Then from that part of time मेरी एक identity, मेरे friends मेरे से connect होने लगे, मेरे batchmates वो हमसे connect होने लगे. So like that हमारा group extend होने लगा, including seniors and juniors. Then after support की बात करूं अगर college का, तो मैं बताया academics not focused, तो obviously none other than Deepti ma'am, she was always there. मैं कहीं भी रहूं, I'll just एक रिंग करता था and she was there कि हाँ ठीक है, you just move on, we'll look after everything, हम सब देख लेंगे. तो वो एक पॉजिटिव मोटिवेशन हमें मिलता था टू डेवलप इंडिविजुअल पर्सनैलिटी, टू रिप्रेजेंट कॉलेज, रिप्रेजेंट यूनिवर्सिटी एट डिफरेंट लेवल्स. तो इन सब चीज़ों में मतलब करते करते एंड टिल आई वाज इन थर्ड ईयर, मैं चीज़ों में मतलब इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया था, इतनी चीज़ें चलती गई कि मतलब एक्चुअली इट्स नॉट इट्स प्रिविलेज फॉर मी ऑल्सो कि एक सिटीजन, बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया, हमें बस एक चीज ये चाहिए होता है कि जस्ट हैव अ नेशनल फ्लैग इन योर यूनिफॉर्म और दैट आइडेंटिटी टू रिप्रेजेंट इंडिया. तो इन थर्ड ईयर मैं इंडिया रिप्रेजेंट किया था थ्रू एनसीसी एंड आई हैव रिप्रेजेंटेड एट सिंगापुर. तो ऑब्वियसली मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो मेरा यूनिवर्सिटी का टैग, माई टीचर्स, माई फैकल्टी एंड एवरीवन, आई एक्चुअली थैंक फ्रॉम डीप ऑफ माई हार्ट टू बीइंग अ सच सपोर्टिव. वो चीज़ें थी. फिर लेटर ऑन एग्जाम्स का इश्यूज हो रहा था, तो उन सब चीज़ों में भी काफ़ी सपोर्ट मिल गया था. तो नथिंग मच टू से, बट एक्चुअली ट्रूली स्पीकिंग, इफ यू नीड टू बैलेंस इट आउट थिंग्स, this is a better platform, this is a best platform. Actually the support you get, the motivation you get, this none other than I don't find anywhere, because जो हमारे MP का education level and comparative to other South Indian states, that is totally, there is a huge gap in it. But इस college में आके वो मेरा mindset totally change हो गया था. So that's all from my end. Thank you. थैंक यू ऋषभ. फर्स्ट टाइम मैंने तुझे इतना बोलते हुए सुना, बहुत अच्छा लगा. थैंक यू मैम. नाउ द नेक्स्ट आई थिंक अभिषेक, आर यू देयर? अभिषेक, he is mute I think. Aditya, please share about your experience. Hello everyone. Good afternoon. Very warm good afternoon to all of you. I hope आवाज आ रही हो, सब सुन पा रहे हो? Yes, सुन पा रहे हैं आदित्य. So for those who do not know me professionally and personally, I would like to introduce myself. I am Aditya Sharma and I joined ISEC University in 2016, back in 2016, and my program was BCom Computer Application. So it was a 3-year course from 2016 to 2019, and I was a BCom Computer Application student under the guidance of Dr. Deepti Maheshwari, Mr. Pawan Singh, and Dr. Vasanti Mathew. मैं BCom करने कैसे आया, वो जानने के लिए पहले थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा. अगर हम देखें तो हम जब स्कूल में होते हैं तो 10th तक हम सब एक ही सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं रोज. हम सारे सब्जेक्ट डिस्कनेक्ट हो गया है आदित्य. आई थिंक अभिषेक सर डिस्कनेक्ट हो गया है. कोई प्रॉब्लम नहीं. आ रहा है. He is trying to join. Sorry for the inconvenience. It's okay. तो जैसे कि मैं कह रहा था कि जैसे जब हम स्कूल में होते हैं तो हम सारे सब्जेक्ट्स रोज पढ़ते हैं, और जो स्टूडेंट होता है वो थोड़ा सा कंफ्यूज भी होता है और थोड़ा सा कॉन्फिडेंट होता है कि उसे सारे सब्जेक्ट्स आते हैं, सब में वो कॉन्फिडेंट भी है. आगे करे क्या? 10th के बाद आता है आपके पास हो जाते हैं, ऑप्शन अलग अलग हो जाते हैं कि आप कॉमर्स लोगे, PCM लोगे, आर्ट्स लोगे, क्या लोगे. तो जो स्टूडेंट होता है वो सोचता है कि क्या लूँ. 2-3 चीज़ें आती हैं, 2 चीज़ें नहीं आती. तो मैं काफ़ी कंफ्यूज था कि मैं क्या लूँ, कॉमर्स लूँ, PCM लूँ.
काफ़ी सोच विचार किया इस बारे में। मेरा मैथ्स इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, तो मैंने PCM नहीं लिया, कॉमर्स चूज़ किया। कॉमर्स 2 साल पढ़ा, 12th हो गया। अब बारी आई थी कॉलेज लेने की, प्रोग्राम सेलेक्ट करने की। I think आदित्य का कनेक्शन लॉस हो गया फिर से। दीप्ति मैम, Yes, sir. कैन वी इनवाइट श्रेया शर्मा? आदित्य है नहीं एक्चुअली सर, उससे पहले मैं प्रवीण को बोलूंगी। शायद आप इस बच्चे की जर्नी नहीं जानते हैं। आई थिंक प्रवीण थोड़ा सा बताए अपने बारे में, फिर श्रेया और पंखड़ी आएंगे और गगन अपने साथ में है, वो भी बताएगा। प्रवीण प्लीज। हाँ बेटे। प्रवीण, वॉइस नहीं आ रही है आपकी, वॉइस नहीं आ रही बेटे, नहीं आ रही, अभी भी नहीं आ रही, शायद कनेक्टिविटी का इशू है। माइक अनम्यूट करो अपने आप को, माइक आपका ऑफ आ रहा है। हाँ। नहीं आ रही है बेटा, वॉइस नहीं आ रही, अगेन कनेक्ट करने की कोशिश करो। ओके, हम मीनवाइल श्रेया को कॉल कर लेते हैं, वो कनेक्शन चेक कर लें तब तक प्रवीण। हाँ, एक बार प्रवीण अगेन से कनेक्ट होंगे। श्रेया आप अपना माइक ऑन करो। Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Thank you, Neetu ma'am, Deepti ma'am, Abhishek sir, Matthew ma'am, for such a warm and emotional welcome. The way Neetu ma'am welcomed us, it was very heart-touching. And good morning, Pradeep sir, Vinay sir. Seniors को भी बिल्कुल उतनी इज्जत है। Good morning, sir. Good morning. मैं बहुत ज्यादा, आप लोगों ने जो मेरे सीनियर्स आए उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें कर ली। मैं बहुत ग्राउंड लेवल पे बोलना चाहूंगी कि जब मेरी आईसेट की जर्नी स्टार्ट हुई तो मेरे बैचमेट्स, मेरे फ्रेंड्स तो बहुत ही बाद में बने और शायद 2 से 3 से ज्यादा बन भी नहीं पाए, लेकिन मेरे फ्रेंड्स प्रदीप सर, विनय सर और क्षितिज सर ही थे। तो ये जान के ही मोटिवेशन हो जाता है कि भैया जिनके साथ लंच शेयर किया है, जिनके साथ बस में घूमे हैं, वो लोग आज इतनी अच्छी जगह पे पहुंच गए। यही अपने आप में बहुत बड़ा मोटिवेशन है। आप लोग को बहुत ज्यादा कॉन्ग्रेचुलेशंस। मुझे उम्मीद है आप लोग को दिन याद आ रहे होंगे, हंस रहे हैं आप लोग भी। मैं इमोशनल होके बैठी हूँ। खैर, जहाँ तक बड़ी बड़ी बातें, मैं तो यही कहूंगी कि जब दीप्ति मैडम है, जब वहाँ पे संगीता जौहरी मैडम है, तो उनसे ज्यादा मैं क्या बोलूं। दीप्ति मैम ने हमेशा बोला है, जब तक पानी में उतरोगे नहीं तैरना सीखोगे नहीं। तो इतनी सी बात है। और ग्राउंड लेवल की मैं बोल रही थी, तो मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहूंगी कि जो लोग मुझे जानते हैं पर्सनली, उन लोग को शायद पता होगा कि शुरू से मेरे हेल्थ इश्यूज काफी रहे। तो आप लोगों ने बहुत सारे सक्सेस सुन लिए अपने सीनियर से, थोड़ा सा फेलियर्स को जानना भी जरूरी है। तो मैं शेयर करूंगी अपने फेलियर्स, है ना। जब मैं आई थी आईसेक्ट में तो आई वॉज वेरी मच पैशनेट अबाउट गवर्नमेंट जॉब्स। मैं आई थी तो मैं अपने IBPS की बुक साथ रख के लाती थी कॉलेज में कि मुझे इसे पढ़ना है। पर कभी भी मैं ये समझ नहीं पाई कि एक अंदर से जो पैशन है वो शायद टीचिंग के लिए ही है। फिर मैं उसकी प्रिपरेशन करती रही, पर आज की डेट में ऐसा है कि हेल्थ इश्यूज की वजह से जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं उनमें ऑलमोस्ट मेडिकल फिटनेस इज कंपल्सरी नाउअडेज, इवन इन बैंकिंग। तो कहीं ना कहीं मेरा वो ड्रीम जो है कुछ मेडिकल की वजह से रह गया। बट आईसेक्ट में आने के बाद जब बहुत अच्छे मेंटर्स मिलते हैं, मैं बिल्कुल मिस नहीं करना चाहूंगी मैडम संगीता पाठक मैडम का नाम। बहुत ही अच्छा मुझे उनसे गाइडेंस मिला। मैं लेखन क्रिया में बहुत आगे बढ़ी और हिंदी में ही उनके गाइडेंस में हिंदी में ही लिख रही हूँ। और आज की डेट में अपनी काफी कविताएं लिख चुकी हूँ। अपनी एक बुक छपवाने के लिए ऑलमोस्ट रेडी हूँ, कुछ संगोष्ठी के लिए कुछ कविताएं बाकी हैं। साथ ही साथ पार्ट टाइम जॉब मैं कर रही हूँ। अभी मैं हायरिंग कर रही हूँ
गुजरात और मद्रास की कुछ कंपनीज के लिए, जिससे मैंने थोड़े दिन पहले अभिषेक सर को भी कनेक्ट किया था, कांटेक्ट करने की कोशिश की थी कि सर कुछ बच्चे हों ITI वाले, और जैसे जैसे वैकेंसीज आएंगी तो बिल्कुल मैं, सर ने जैसे बोला था कि मैं सर को भी इन्फॉर्म करती रहूंगी, ताकि मेरे बाद जो बच्चे वहां पे आ रहे हैं उनको मेरी तरफ से अगर कोई मौका मिल पाए तो बहुत ही अच्छी बात है। और आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट RNTU दैट इतनी अच्छी फैसिलिटीज अब जो दीप्ति हमने बताया, जो हमारे टाइम पे नहीं थी, वो हमारे जूनियर्स को मिल रही है। ये बहुत ही अच्छी बात है, मुझे बहुत अच्छा लगा ये सुन के। और मैं क्या बोलूं मैम, आपको पता है, बसंती मैम को बहुत अच्छे से पता है कि मैं उस टाइम भी UGC नेट के लिए बहुत ज्यादा चाहती थी कि मैं करूं, और अभी भी मैंने उसका पेपर भरा हुआ है, प्रिपरेशन में कर रही हूँ साथ ही साथ में। पोएम लिखना इज माय, वो तो जस्ट इज लाइक अ हॉबी, आई एम राइटिंग इट, अगर उसमें भगवान ने चाहा तो जरूर कुछ हो जाएगा। बाकी प्रिपरेशन मेरी UGC नेट की है। दीप्ति मैम, एक दिन हुआ तो मैं आपके जैसी लेक्चरर बनूंगी मैं आपसे कांटेक्ट करूंगी, उस टाइम भी एल्यूमिनाई मीट में बोलूंगी कि, और यही बोलना चाहती हूँ मैम कि जब अभी मीट स्टार्ट हुई, जब मैंने देखा तो आपको देख के मैं अभी यही सोच रही थी कि प्रवीण से बोलूं, प्रवीण चुप होके बैठ जा, दीप्ति मैम आ गई आज भी आपसे डर वैसे ही लगता है मैम। बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ सीनियर्स को भी देख के, जूनियर्स को भी देख के, सब लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं लाइफ में। ऑल द बेस्ट पंखुड़ी, अलंकृता, और थोड़ा सा इनफॉर्मल होके मैम, क्योंकि इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला, जिनके कॉन्टेक्ट्स मेरे पास नहीं थे वो भी मुझे यहाँ दिख रहे हैं। मीरा दिख रही है, मीरा कॉन्ग्रेचुलेशंस, थोड़े दिन पहले तुमने अपनी नई लाइफ की जर्नी स्टार्ट करी है, मुझे न्यूज मिल जाती है लेकिन तुमसे कांटेक्ट नहीं है, उसके लिए बहुत बहुत बधाई है तुमको। और बस मैम, मैं अगर कभी भी आईसेक्ट में कुछ भी काम आ पाई तो मैं जरूर आईसेक्ट के लिए रेडी रहूंगी। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू। प्रवीण, आई थिंक अब आप शेयर करेंगे, अभी भी आवाज नहीं आ रही है शायद माइक में कहीं। श्रेया अभी हो आप? हाँ जी सर। Shreya, we have the ISEC publication like in our ISEC. So जैसा आपने बताया, you are writing some books और काफी सारी कविताएं आप लिख रहे हो। So Alumni Connect के थ्रू आप जो है उसका भी एक बेनिफिट और एक एडवांटेज ले सकते हो ना। ISEC का अपना एक खुद का पब्लिकेशन हाउस है, और अगर आप चाहें तो we will connect you with the concerned team over there. बिल्कुल सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी मुझे इसके लिए किससे कांटेक्ट करना होगा? अभी तो आप आफ्टर मीटिंग मुझसे ही कांटेक्ट कर लीजिएगा, देन आई विल कनेक्ट यू विद द कंसर्न टीम। ओके ओके। उससे आपको जो भी अगर आप बुक प्रिंटिंग्स वगैरह या पब्लिकेशन में कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो वो एक सपोर्ट आपको मिलेगा। जी 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 सर, अगर मैडम सर आप लोग की अनुमति हो तो आप लोगों ने इतनी अच्छी मिसालें दी हैं अपनी शायरी के माध्यम से, कविता की कुछ लाइनें मैं भी पेश कर दूं तो शीर्षक उड़ान है उसका। तो ऐसा है कि कर प्रणाम राम को, तो निकल अपने काम को, जो काम तेरा ना बने हो के आ तू चार धाम को, जो रोकते हैं टोकते हैं लोग तो तू क्यों इतना उदास है, कूटनीति से ना डर बस याद रखिए कृष्ण का भी दाम है, रण में हो आवाज ऐसी ना हो कोई दूसरी, चढ़ कदम की डाल पे बजा दे सबकी बांसुरी, रोके जो आंधियां तो मोड़ दे दिशाओं को, कह के बम बम तू भी खोल अपनी भुजाओं को, लगा पंखों को उड़ा, लगा पंखों को उड़ा, पीछे छोड़ दे सीमाओं को, जो वीर आगे हैं बड़े वो तोड़ दे बलाओं को, बढ़ा दिल की आग तू, बढ़ा दिल की आग तू, तो फूंक दे समंदर, मात दे जो शिकस्त को भी बन जा वो अभिनंदन, जो देखता है साथ तू, गर देखता है साथ तू तो रखना आस छोटी, पहुंचे थे सीमाओं पे रह गई थी कसर थोड़ी, कदम डगमगाए जो उसने है तिरंगे की चादर ओढ़ी, देखना न पीछे मुड़ के कि पतवार बना है मोदी, जो थी जली तेरी दलान से, जो थी जली तेरी दलान से, डरी न जो किसी जलान से, लगा ऐसी चिंगारी के अग्नि फिर जा मिले आसमान से, रखना कोई मलाल तू, बन जा एक मिसाल तू, बना के अग्नि वायु बटोर सबके सलाम तू, कहानी अपनी कर मुकम्मल बस बन जा अब दूसरा कलाम तू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू मैम। विदा चाहूंगी, मैं वर्किंग आवर्स में हूँ मैम, मुझे ड्यूटी अब लौटना होगा। थैंक यू दीप्ति मैम, थैंक यू नीतू मैम, अभिषेक सर, बसंती मैम, थैंक यू सो मच, बाय। थैंक यू मैम। प्रवीण, आई थिंक माइक ओपन है। नहीं आ रही है, अभी भी नहीं आ रही है। प्रवीण बहाना ढूंढ रहे हो तुम ना बोलने का, ऐसा हो रहा है क्या?
जब तक मीनवाइल फिर से सब कनेक्ट। गगन, गगन। यस मैम। हाँ प्लीज, अब आप अपने स्टार्टअप के बारे में बताएं, अपनी जर्नी बताएं। या मैम फिलहाल तो मैम मैं पहले तो आपको सॉरी बोलना चाहूँगा, मैंने आपको कॉल पिक नहीं करा, एक्चुअली ड्राइव कर रहा था, अब भी पहुंचा हूँ यहाँ पर। और जैसा कि मैं बताना चाहूँ, मैं भी 2019 बैच से पास आउट हूँ। मैं कुछ अभी कहना चाहूँगी, पर अपने सही टाइम पर आया है। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। यस मैम। हाँ तो मैं अपना बता रहा था, जैसे तो मैं अभी 2019 बैच से पास आउट हुआ हूँ और अभी MBA कर रहा हूँ रविन्द्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी से। और जैसा कि सब अपना बता रहे थे, जैसे ऋषभ भैया बता कर गए कि वो मतलब एकेडमिक में इतने अच्छे नहीं थे, सेम मेरी कंडीशन, मैं भी एकेडमिक में इतना अच्छा नहीं हूँ। जब उस कॉलेज में आया तो यही था कि मैं भी सिर्फ मैं स्पोर्ट्स के लिए आया था मेनली, क्योंकि मैं क्रिकेट बहुत खेलता था। बट जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ा उसमें, तो मुझे ऐसे नए नए प्लेटफॉर्म्स मिले जो मैंने सोचे नहीं थे, और जो मैंने कभी आज तक किए भी नहीं थे। उनके थ्रू मैं बहुत ऊपर ऊपर गया हूँ और उसी से थोड़ी सी पहचान बनी उस कॉलेज में। और आज की डेट में ऐसा है कि मुझे वही चीज बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि उससे मैं सीखा हार्ड वर्क। और आज जो मैं हूँ, जो मैं कर रहा हूँ, वो मेरे को उसमें बहुत काम आ रहा है। हार्ड वर्क मैं इधर बहुत हार्ड वर्क कर रहा हूँ, वो मुझे उधर से सीख मिली। और मैं उसके लिए सबसे पहले जौहरी मैम, रमा मैम और आखिर नीतू मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ कि आप लोग ऐसा आज मैं इतना ऐसा हार्ड वर्किंग बन चुका हूँ कि खुद ही सारे काम कर लेता हूँ। मैंने तो सबसे शुरू में तुम्ही को याद किया था। यू आर द ग्रेट अचीवर। यस मैम, थैंक यू मैम। मैं सबसे एक चीज शेयर करना चाहूंगा कि कोई जरूरी नहीं है कि आप मतलब जॉब करो या गवर्नमेंट जॉब करो। मैं इस चीज से बहुत एग्जांपल हूँ कि मैंने हर चीज ट्राई करी। मैंने पहले गवर्नमेंट जॉब के लिए कोचिंग्स करी, फिर उसके बाद मैंने जॉब के लिए अप्लाई करा इधर उधर, मेरा मन नहीं लगा था। आखिर में जाके मेरे को लगा कि कुछ और करो, कुछ क्रिएटिव करो, और मैंने ये करना स्टार्ट करा, मेरा बिजनेस का स्टार्ट सोचा और वो करा, और इसमें मेरा बहुत मन लग रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, खुद से मन से अच्छा लग रहा है करना। तो मैं सबको यही बताना चाहूंगा, जो आपका मन करता है अब वो चीज पहले प्रेफर करे करना। बाकी ये जॉब वॉब अगर नहीं है मन, तो मेरे हिसाब से उतना नहीं होगा, मन भी नहीं लगे और आप कर भी नहीं पाओगे। 1 महीने 2 महीने बाद आप पाओगे कि वो नहीं रही, छोड़ दोगे या मन जाओगे नहीं, छुट्टियां मारोगे। इससे बेटर है कि जिसमें मन लगे वो बेटर है, वो करो। मैंने खुद ने मतलब 2 साल 2019 के बाद ही मेरे मन में एकदम से आया कि नहीं यार बिजनेस करना चाहिए। तो मैंने अपनी मॉम से बात करी, थोड़ा डिस्कशन करा, उन्होंने मुझको बहुत सपोर्ट करा इस चीज में। और उस सपोर्ट की वजह से आज मैं रेस्टोरेंट ऑलमोस्ट 1 तारीख से ओपनिंग हो जाएगी रेस्टोरेंट की मेरे। तो उन्हीं की वजह से है जो है आज वो थोड़े सपोर्ट की वजह से देते हैं हम। आप लोग बहुत सपोर्ट किया है मेरे को, क्योंकि मैं जितने भी बाहर लेवलों पे डांस करने गया हूँ आज तक इधर उधर, तो आई थिंक कि मेरे को तो आज होना ही नहीं था, पर आप लोगों ने बहुत मदद करी जिसकी वजह से मैं इतना हो गया हूँ, आगे तक कर लिया। और बाकी मैं सबसे यही कहना चाहूंगा कि आप लोग आए मेरे रेस्टोरेंट पे एक बार, क्योंकि यहाँ पूरा इंटीरियर एक्सटीरियर सब मैंने खुद ने डिजाइन किया है, और मेरी मदद करी है रजत गनवार ने, जो मेरे साथ रहा हमेशा, मेरा दोस्त। एक वही दोस्त है सबसे हर जगह काम आया है। पूरा इंटीरियर उसने किया है यहाँ पर और मैंने डिजाइन की। एक बार आप सभी आइएगा, मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, ये कटारा हिल्स के पास है, जरूर आइएगा। थैंक यू। गगन किस नाम से स्टार्ट करा? सर द्वारका द रेस्टोरेंट। एक्चुअली एकदम से क्लिक हुआ द्वारका, तो वही रख दिया नाम। नहीं, वेरी नाइस, गुड नेम। थैंक यू सर, थैंक यू। पंखुड़ी विदात प्रवीण, हाँ प्लीज आप माइक एक बार टेस्ट कर लो। हेलो। हाँ, यू आर ऑडिबल। ओके, सभी को गुड मॉर्निंग। काफ़ी अच्छा लगा कि इतना अच्छा अवसर हमें मिल रहा है, और खासकर जो है आईसेक से जुड़कर अपनी आपको तैयार करना काफ़ी अच्छा रहा। जब मैंने 12th मैंने जैसे कंप्लीट किया, जैसे कि मुझे तो पूरा कॉलेज नहीं भूल सकता, क्योंकि मैं कितना ही छुपना चाहूँ, पर जब मैं जाता था मेरी स्पीड से सब मुझे एक बार में मतलब मेरा रास्ता कंप्लीट करते हुए वहां से 100 लोग गुजर कर मुझे देख सकते थे। तो इसलिए सारा आईसेक जो है मुझे याद रखता है, और मैडम लोग का और सर लोगों का काफ़ी सपोर्ट रहा कि हर चीज़ों में उन्होंने मदद की। और हमारे सीनियर्स
में काफी अच्छा उन्होंने भी सपोर्ट किया है। और प्रदीप सर और विनय सर को देखकर काफी खुशी हो रही है कि काफी समय बाद हम उनको देख पा रहे हैं। और उनकी उपलब्धियों को देखकर तो हम भी सोच रहे हैं कि प्राउड फील कर रहे हैं कि हमारे सीनियर्स भी एक अच्छे लेवल पे पहुंच गए हैं। तो मेरा जो लाइफ का है तो काफी चीजें नेगेटिव थी। और इस नेगेटिविटी में से भी होप को निकालना और उस पर चलना काफी चैलेंज भरा था। जब फर्स्ट टाइम मैं आईसेक्ट में आया था तब मैं अपने फ्रेंड सचिन के साथ आया था। और वो फर्स्ट डे मेरे लिए एकदम निराश करने वाला था कि मैंने इतने दूर कहाँ पर कॉलेज ले लिया। और इसके बाद भी जो है जब मैं फर्स्ट टाइम अपनी क्लास में एंटर किया तो मुझे बैठने के लिए चेयर नहीं थी। मैंने एक फैकल्टी को कहा था, उनका नाम मैं नहीं लेना चाहूँगा। तो मैंने उन्हें कहा कि मेरी आप व्यवस्था कीजिए। तो उन्होंने मुझे डांट कर कहा कि आप जो है जो आपको दिख रहा है बैठने के लिए आप उसी पे बैठिए। मैंने उनकी बातों का गलत मतलब नहीं निकाला क्योंकि जब मैं वॉकर से खड़ा रहता हूँ तो सब जन को ऐसा लगता है कि मैं काफी ठीक हूँ, अच्छा हूँ और मैं प्रॉपरली सारी चीजें कर पाता हूँ। पर वे नहीं जानते थे, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। पर जो है उस दिन पूरा दिन मैं खड़ा रहा। फिर अगले दिन से जब तो पूरा 3 साल तक के मुझे ऐसा लगा कि मैं वहाँ पर एक वीआईपी पर्सन की तरह कि मुझे लेने के लिए अपने डिपार्टमेंट तक के बस आती थी, वैन आती थी। और जब भी सारी और मेरे फ्रेंड्स लोग भी काफी मजे लेते थे। सब इनके साथ रहना है मतलब फ्री में सफर करना है, यहाँ से वहाँ तक के आराम से जाना है। और मैम लोगों से मैंने काफी कुछ सीखा है कि मैम ने डांटा भी है कि जब कुछ समझ में नहीं आया तब पर उन चीजों से सीखा है कि आप जब तक के जो है अपने आप में खुश नहीं रहते हैं तब तक आप किसी भी चीज को हासिल नहीं करते। आज जो है मैंने जो बीकॉम किया है कंप्लीट, उससे रिलेटेड तो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। पर जो है मुझे सबके सामने साबित करना था कि मुझे जो भी रास्ता हो, क्योंकि अगर मैं कॉमर्स भी करता तो वहाँ पर भी मैंने काफ़ी ट्राई किया था। और मुझे दूर दूर कोचिंग्स मिली और मैं कंफर्टेबल नहीं था कि वहाँ जाकर और सारी चीज़ें करूँ। तो मैंने काफ़ी सोचा और फिर मैं एक एनजीओ से ज्वाइन हुआ, जीएनसीसी करके। तो उन्होंने मुझे ऑफर किया कि आप बच्चों को पढ़ाने का काम करिए। और कंप्यूटर मैंने सीखा। उसके बाद में मैंने खुद का भी कंप्यूटर सेंटर ऑन किया और काफ़ी बच्चे उसमें हर साल जो है हम लोग करीबन 30 बच्चों को जो है वहाँ से बेसिक कंप्यूटर सिखाते थे। और लॉकडाउन के कारण अभी वो सेंटर बंद है। लॉकडाउन खुलते से ही हम लोग फिर से उसको स्टार्ट करेंगे। और काफ़ी अच्छा लग रहा है। और अभी जो आपकी इच्छाएं है ना, जैसे पिछले भाई ने कहा कि आपको जहाँ पर खुशी हो वह करना चाहिए, तो वैसे ही मुझे भी गाने का काफ़ी शौक था। तो मैंने भी अपना एक सॉन्ग रिकॉर्ड किया और वो आप लोग यूट्यूब पर उसे सुन सकते हैं। वो सॉन्ग जो है तेरे वचन से है। इसके बाद और भी मैं ऐसे सॉन्ग रिकॉर्ड करने वाला हूँ। तो सभी चीज़ें काफ़ी अच्छी है और मैं चाहूँगा कि आईसेक्ट जैसे कि मुझे सबसे अच्छी आईसेक्ट ने एक चीज़ दी है और वो है मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त श्रेया और उज्जवल, सुनीता। ये काफ़ी अभी भी हम लोग क्लोज है। काफ़ी लोगों की फ्रेंडशिप्स टूट गई है और वे लोग अलग अलग हो गए, पर आज हम लोग भी अभी भी साथ में हैं और डिस्कस करते हैं कि किस तरह के अपने फ्यूचर को आगे बढ़ाएं और क्या करें। तो अभिषेक सर ने जैसे कि बताया है कि आगे जो है पुराने स्टूडेंट जुड़कर जो है वो दूसरों के लिए रास्ते तैयार कर सकते हैं, दूसरों के आगे बढ़ने के लिए वो कुछ कर सकते हैं।
तो काफ़ी अच्छा लगा, और हम भी यहाँ जुड़कर जो है आगे बढ़ने के लिए कोशिश करेंगे। थैंक यू सर, मैम। थैंक यू प्रवीण सर। प्रवीण, क्या हाल है? थैंक यू मैम। अच्छा लगा आपको सुन के, बहुत मैम। अच्छा मोटिवेशन आपका सफर रहा, और आगे भी आप सफल हो ना। जी मैम, आप लोग को देखकर काफी अच्छा लगा, और थैंक यू बेटा। ओके। मैं उज्जवल राणा, आप कुछ कहना चाहेंगे? उज्जवल राणा, आ रही है आवाज? जी आप बोलिए। आवाज आ रही है क्या मेरी? क्या आ रही है बेटा? हाँ, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सबको गुड आफ्टरनून। दीप्ति मैम, बासंती मैम, एंड और जो भी है मेरे फ्रेंड्स हैं, सीनियर्स हैं। Am I audible? वीडियो ऑन नहीं है आपका, वीडियो भी ऑन करो तो अच्छा लगेगा। गुड आफ्टरनून उज्जवल। हेलो उज्जवल, सुन पा रहे हैं आपको, बोलिए। हेलो हेलो हेलो, बोलिए बोलिए, सुन रहे हैं हम लोग। अच्छा। हाँ, तो मेरा, जैसे मैंने अभी सबको सुन रहा था, एक्चुअली क्या है कि अभी मैं ड्यूटी पे हूँ, और सीन वैसा है नहीं कि मैं वीडियो ऑन कर सकता हूँ। मेरा डिपार्टमेंट उस टाइप का है, तो एक्चुअली अभी थोड़ा सा गैप है मेरे पास, और आई वॉज वेटिंग फॉर माई चांस कि हाँ कब मुझे मौका मिलेगा, या मुझे कोई बोलेगा कि हाँ भाई अब तुम भी कुछ बोलो। तो मैंने बहुतों को सुना, प्रदीप सर को सुना, श्रेया को सुना, प्रवीण को सुना, और काफ़ी लोग ऐसे हैं, विनय सर को सुना, काफ़ी लोग ऐसे जिनको मैं नहीं जानता हूँ, सीरियसली नहीं जानता हूँ, बट उनको भी सुना। सबने अपना स्ट्रगल डिस्कस किया, बट मेरे पास ज़्यादा कुछ ये नहीं है बोलने का कि एक्चुअली क्या था कि ये एक बार मैंने अग्रवाल सर का एक वर्कशॉप अटेंड किया था, कॉलेज ने ही प्रोवाइड किया था। अग्रवाल सर, पूरा नाम मुझे याद नहीं है, उन्होंने एक शब्द बोला था कि आप अगर प्योर गोल्ड बनना चाहते हो तो जो प्योर गोल्ड बनाने में ना उसकी बहुत पिटाई होती है, तो पिटने से मत डरो, जस्ट प्रे करो और जस्ट खुद को ना ऐसा बनाओ कि हाँ एकदम प्योर गोल्ड बन के आएंगे। तो स्ट्रगल मेरे लिए जितना स्ट्रगल हुआ, आई एक्सेप्ट ऑल द थिंग्स एज अ कि हाँ ठीक है, दैट वाज माय द ट्रेनिंग टाइम। तो मेरे लिए कुछ ऐसा कुछ नहीं है, हाँ, बट सिंस स्टार्टिंग आई वाज वेटिंग फॉर अ जॉब लाइक वेयर आई कैन कमांड। तो ऐसा जॉब मैं चाहता था कि जहाँ पे मैं कमांड कर सकूँ, और दीप्ति मैम के कारण मुझे एक जॉब मिला, बट वो डेस्क जॉब था जहाँ पे मैंने पूरी ईमानदारी से काम की, और कभी ऐसा नहीं होने दिया कि हाँ, क्योंकि वो दीप्ति मैम ने ही मुझे रेफर किया था, तो कभी मैंने ऐसा नहीं होने दिया कि हाँ मतलब बात उन पे आए। तो एक अच्छे तरीका से मैंने वो जॉब भी किया, 2.5 साल जॉब किया था, उसके बाद क्विट कर दिया जॉब, और देन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर CDS एग्जामिनेशन, क्योंकि मेरा मतलब स्टार्टिंग से ये ड्रीम था डिफेंस में जाना, बट अनफॉर्चुनेटली आई कुडंट मेक इट। और उसके बाद जैसा कि कमांडिंग जॉब, तो आई गॉट अ चांस इन इंडिगो एयरलाइंस वेयर आई एम डीलिंग 30 ग्रुप ऑफ पीपल्स, और मैं उनका एक सिक्योरिटी ऑफिसर हूँ। तो मैं फ्लाइट को एक सिक्योर करता हूँ कि हाँ वो अगर पैसेंजर को लेके जा रही है तो इस फ्लाइट इज सिक्योर और नॉट। तो सारा चीज सिक्योरिटी से रिलेटेड मैं देखता हूँ यहाँ पे, और राइट नाउ आई एम पोस्टेड इन पटना। और बेसिकली मेरे पास ज्यादा कुछ है नहीं, मैं स्ट्रगल को कभी मतलब एज अ ये नहीं लेता हूँ, हार्डल नहीं लेता हूँ, मैं कभी हमेशा स्ट्रगल को एज अ चांस लेता हूँ, चैलेंजिंग लेता हूँ। तो मेरे लिए ज्यादा कुछ ये नहीं है। हाँ, टाइम सबके लिए था, सबके लिए खराब टाइम होता है, अच्छा टाइम होता है, बट खराब टाइम से ही आपको अच्छा लगता है। कोई टाइम का सबसे अच्छा खासियत ये है कि वो बदलता है, और बाकी सब ठीक है। और हाँ, सारे फैकल्टी को मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा, क्योंकि दीप्ति मैम का एक बात मुझे हमेशा याद रहता है कि एक्सक्यूज मत दो। अगर इफ यू रियली वांट अ थिंग, जस्ट गो फॉर इट, डजंट मैटर कि व्हाट यू हैव और नॉट, आपके पास क्या है क्या नहीं है, क्या जरूरत है, आप पहले कदम बढ़ाओ,
बोलते हैं ना कि अगर अच्छे सच्चे दिल से अगर किसी चीज को पाना है तो आप कदम बढ़ाओ, कायनात उसे मिलाने में जुटती है। तो ये मेरा परसेप्शन है, बाकी सबका अपना अपना है, एंड आई रिस्पेक्ट सबका परसेप्शन का, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। तो बस यही है। थैंक यू उज्जवल। वीडियो ऑन नहीं किया आपने, बहुत टाइम हो गया उज्जवल को देखा नहीं। मैम एक्चुअली क्या है कि अभी मैं फ्लाइट पे ही हूँ, तो अच्छा, अभी ओके मतलब मैं ऐसे जगह पे हूँ जहाँ पे मैं वीडियो ऑन नहीं कर सकता, रिस्ट्रिक्शन है। ओके 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 ओके। नाउ पंखुड़ी विथ अस, पंखुड़ी प्लीज, और अलग भी है। Thank you so much, ma'am. Very good afternoon to all my respected faculties and special thanks to Deepti ma'am, Sunita ma'am, Matthew ma'am. Like हर दिन डांस के साथ कुछ नया ही सीखा है। मैं फिलहाल टैलेंटेड ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रही हूँ गुड़गांव के अंदर। इसके साथ साथ मैं अपना खुद का भी एक ऑर्गेनाइजेशन कर रही हूँ, दैट इज फ्लोरिशेस। हमारा ऑर्गेनाइजेशन करते हैं जिसमें हम सबको ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं टू द डिजायर्ड स्किल्स जो भी वो लैपअप कर रहे हैं, और उनकी हेल्प करते हैं मोटिवेटेड रह करके किसी भी अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में प्लेस द पोजीशन। सो एट टैलेंटेड मैं एडमिशन लीड हूँ फॉर द इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, जिसमें वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए सर्टिफिकेशन प्रोग्राम होते हैं अल्टीमेटली, एंड बाय गॉड्स ग्रेस एंड द ब्लेसिंग्स ऑफ माय फैकल्टीज मैं रिसेंटली नेशनल एग्जाम रिव्यू के क्वालिफाई हुई हूँ, जिसके अकॉर्डिंग मुझे प्रमोशन मिला है एंड आई एम बीइंग द मैनेजर फॉर ऑल द इंटरनेशनल कोर्सेज। तो जितने भी इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन कोर्सेज इस कंपनी के अंदर आएंगे दैट विल गो टू मी एंड माय मैनेजर। मैम अभी बहुत ज्यादा बोलने के लिए तो है नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा ब्लैंक हो चीजों को लेकर के। मैं मीटिंग में थी बट उसको पॉज करके ये मिस नहीं करना चाहती थी, मैंने कमिटमेंट किया है। तो मैं यहाँ ऊपर कैफेटेरिया में आके बैठी हुई हूँ अल्टीमेटली। एंड ये मैं बस यही कहूँगी कि अगर कभी भी किसी को भी किसी भी स्टेप पे रिक्वायरमेंट है, कोई भी हेल्प की, तो आई एम ऑलवेज अवेलेबल एज ए सिंगल एंड आई विल बी प्लीज। अगर बहुत अच्छा प्रिविलेज फील होता है तो यूनिवर्सिटी से कॉल आता है, मैम कहती है बेटा ये काम करना है, और मैम को भी लगता है कि हाँ इनके लिए आवाज ही काफी है आज की, जरूरत नहीं है किसी और कमाल की। तो दैट्स समथिंग वेरी वेरी थैंक यू मैम। थैंक यू पंखुड़ी। एक प्रेजेंट पंखुड़ी सर टैलेंट कंपनी में है, गुड़गांव में है, और काफ़ी अच्छे पैकेज पर है, और इसके अलावा पार्ट टाइम अनिरुद्ध के साथ में बिजनेस के अंदर भी इनरोल्ड है। तो पंखुड़ी इन फ्यूचर भी हमारे साथ कोलैबोरेशन में रहेगी और काम करेगी इस चीज़ में आगे। अलंकृता भी हमारे साथ में है, फिर अंकित की बारी आएगी। ठीक है अलंकृता। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून सर। मैं इतने देर से सुन रही थी सभी लोगों का कि अरे बाप इतनी बड़ी बड़ी सक्सेस स्टोरी सबकी थी, और मुझे लग रहा था कि अब भी मुझे भी बोलना है, मुझे भी बोलना है। तो अभी करेंटली तो मेरे पास सच कुछ ज़्यादा है नहीं बोलने के लिए। अभी मैं MPPSC की प्रिपरेशन कर रही हूँ, बस वेट कर रही हूँ कि पेपर हो जाए और होपफुली बस निकल जाए मेरा पेपर इस बार। तो होपफुली अगले एल्यूमिनाई मीट में मैं भी बता पाऊँ कि हाँ मैंने भी कुछ किया है या फिर कुछ ऐसा। और रही बात, आज बहुत अच्छा लग रहा है मैम आप लोगों को देख के, बसंती मैम को देख के, मतलब याद आ गई वही डिपार्टमेंट एकदम सामने से आ गया कि अरे हाँ यहीं पे हम लोग सारी उधम मचाया करते थे, मैम से डांट भी खाए हैं। मैम को तो मुझे मेरी दूसरी मम्मी बोल दिया जाता था कि हाँ ये तुम्हारी मम्मी है, तुम्हें बुला रही है, तुम जाओ जल्दी, ये चीज़ होता था। तो हाँ और बहुत सारी चीज़ें मैंने आईसेक से सीखी है, ये मैं कहूँगी। सारी चीज़ें जैसे कि मैम ने इतना ज़्यादा मतलब पीछे लग के सारे काम कराया ना कि उससे ये चीज़ अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आ गया कि तुम कुछ भी कर सकते हो मैनेज करने के लिए, कोई भी चीज़ करने के लिए। तो आईसेक ने जो प्लेटफॉर्म दिया है और जो ग्रोथ दी है मुझे नहीं लगता कि शायद कोई और यूनिवर्सिटी दे पाती इतना अच्छा। तो उसके लिए सीरियसली बहुत ज़्यादा थैंक यू, और कोशिश रहेगी कि आगे इन फ्यूचर हम लोग मिल पाए फिजिकली नॉट वर्चुअली। बस दैट्स इट। थैंक यू अलंकृता। अंकित। सबसे पहले सभी को गुड आफ्टरनून। तो इतना सारा है बोलने के लिए, मेरे पास बहुत सारा है। जैसे कि मेरे सीनियर्स जो है वो बहुत हैवी पोस्ट पे है, और जो मेरे फेवरेट सीनियर है देखो अभी मेरे सामने है, पंखुड़ी दी, अलंकृता मैम,
श्रेया मैम, ये सारे बहुत ज्यादा सपोर्टिव थे और आज भी सपोर्टिव हैं, और मैं इन्हें एनी टाइम कॉल करके परेशान करता रहता हूँ। ये सामने ही आप इन लोगों से पूछ सकते हैं। रही बात RNTU की, तो RNTU मेरे हिसाब से मैं अगर बताऊं तो वो एक दूसरी फैमिली है मेरी, जो एक फैमिली जिसमें मैं रह रहा हूँ, और RNTU एक मेरी दूसरी फैमिली है। RNTU एक ऐसा प्लेटफॉर्म, मतलब आप जिस फील्ड में हो, RNTU आपको उसके लिए हमेशा आगे बढ़ाता है। अब वो आप पढ़ाई से रिलेटेड हो, कल्चर से रिलेटेड हो, या कुछ और चीज हो। मैं RNTU में गया था जब मेरा 2016 में एडमिशन मैंने बीकॉम कंप्यूटर में लिया, तो मैं ब्लैंक था, मुझे कुछ नहीं आता था। इवन मैं छोटी मोटे स्टेज पे ऐसा एंकरिंग करता था। तो दीप्ति मैम ने मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया कि हाँ भाई, तू हमारे कॉलेज का जो ऑडिटोरियम है उसमें एंकरिंग तू करेगा। और वो सीरियसली वो मौका मेरे लिए बहुत बड़ा मौका था, बिकॉज इतने सारे लोग मैंने फेस नहीं किए थे पहले, इतने सारे लोग, और मैं बोल रहा हूँ, और मैं हर कुछ बोल रहा हूँ और लोग तालियां बजा रहे हैं। और पहला मेरा टर्न था कब था, जब मैंने तापसी पन्नू के साथ इंटरेक्ट किया था। वो सीन, मेरी प्रोफाइल क्रिएट की थी उस सीन ने, और उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ रविन्द्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी का, दीप्ति मैम, संगीता जौहरी मैम, नीरू पालीवाल मैम और अनुराग सर। मैं और दूसरी चीज ये कहना चाहूंगा, मैं बहुत ज्यादा बोलता था स्टेज पे और ऐसे शोज पे, तो मैं मैम को बताता भी था, मैम मैं आज यहाँ गया, मैं यहाँ गया, तो मैम मुझे डांटती थी, वो इतनी जगह जा रहा है, इतनी जगह ये सब कर रहा है, वहां का एक सर्टिफिकेट ले लिया कर, लड़के ले लिया कर। नहीं, मेरे को तो चाहिए आप मुझे पेमेंट ना करो लेकिन सर्टिफिकेट दो। ये मैम की बात मुझे बहुत अच्छी तरह याद है आज भी, कि मैम ने मुझे हमेशा मोटिवेट किया है कि बेटा तू कर, अगर गलत हो रहा है कर, लेकिन कर। और इसी चीज से मेरे को RNTU में सबसे पहले मैंने एज अ RJ परफॉर्म किया है रेडियो युवास, जो हमारी यूनिवर्सिटी का रेडियो है, और मैंने वो उसी की जर्सी अभी पहनी हुई है रविन्द्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी की, जो मुझे युवास ने प्रेजेंट की थी। तो मैं बहुत ज्यादा थैंकफुल हूँ रविन्द्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी का। कुछ है नहीं बताने के लिए, बिकॉज ये स्टार्ट है, अभी बहुत ऊपर जाना है। और मेरा ये मानना है कि अगर मैं सबसे ऊपर पहुंचा, और तो मैं अपने कॉलेज को कभी नहीं छोड़ूंगा, अपने कॉलेज को साथ लेके ऊपर जाऊंगा, कॉलेज के नाम को साथ लेके ऊपर जाऊंगा। थैंक यू। थैंक यू अंकित, थैंक यू। एनी अदर? मीरा, ये वीवो से कौन कनेक्ट हुआ है? आई डोंट नो, सचिन है या कौन? आप में से कोई और? Deepti ma'am, yes, Deepti ma'am, within 5 minutes we have to finish the program. Actually 1:30 से next एक activity है। ठीक है। आई थिंक वासंती मैम, प्लीज, मैं आई वुड लाइक टू इनवाइट डॉक्टर वासंती मैथ्यू मैम, आप भी, क्योंकि आज पुराने सारे बच्चों को आप भी मिले हो, तो आप भी थोड़ा सा अपना व्यू शेयर करें और बच्चों को मोटिवेट भी करें, और आगे इस तरह से कनेक्ट अपना बना रहे, हम इस प्लेटफॉर्म को और आगे ले जा सकें। प्लीज मैम, ओवर टू यू। मैम, थैंक यू मैम। सबसे पहले वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स। आप लोगों से मिलके बहुत अच्छा लगा, खासकर उस बैच के बच्चों से, जैसे विनय मिश्रा, प्रदीप तिवारी, ये मेरे आने के पहले के बच्चे हैं। तो इतना सक्सेस देखकर हमें भी लगता है कि हम बच्चों से इतना और उनसे बात करें, ताकि आप जैसे बच्चे और अच्छे से निकल पाए। थैंक यू सो मच। आप लोगों से बात करके, आप लोगों का फ्यूचर सुन के बहुत अच्छा लगा। हम चाहते हैं कि आने वाले समय में, भविष्य में भी आप और तरक्की करें और आगे बढ़ें और अच्छी अपनी ऊंचाइयों पर आगे बढ़ें। मैं अभिषेक सर को भी थैंक्स देना चाहूंगी कि उन्होंने बहुत अच्छा एक एलुमनाई इंजेक्शन प्रोग्राम रखा, जिससे हम अपने बच्चों से मिल पाए, और आगे भी सर कोशिश करेंगे कि हम और बच्चों को इसमें जोड़ें और बच्चे इसमें आ पाए, और बहुत अच्छे से हम इसको सक्सेस बनाने की कोशिश करेंगे, और बच्चे भी अच्छे भविष्य में आप सभी आगे बढ़ें। इसी कामना के साथ आप सभी को मैं थैंक्स देना चाहती हूँ कि आप सभी इस इंजेक्शन प्रोग्राम में आए। और मेरी एक कोशिश है, प्रवीण ने कहा था कि वो कुछ सॉन्ग का एल्बम निकाल रहे हैं, तो एक मन है कि प्रवीण कुछ 2 लाइन सुनाए तो हमारा ये प्रोग्राम और सफल हो पाएगा। थैंक यू सो मच। मेरी तरफ से आप सभी का धन्यवाद देती हूँ। नीतू मैडम को धन्यवाद देती हूँ, दीप्ति मैडम को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छे से प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराया, और आगे भी हम सभी इस तरह से कोशिश और करेंगे। अभिषेक सर, आपकी अनुमति हो तो मैं प्रवीण को बोलूं कि कम से कम 2 लाइन सुनाए, क्योंकि वो बता रहा था कि वो अपना एल्बम चला रहा है। तो प्रवीण। हेलो मैम, आवाज आ रही है मेरी? सुन पा रहे हैं प्रवीण। ये गीत एक
इस टाइप का है। कुचला था ये जीवन, मैं अंधकार में था, आंसुओं के सिवा मेरे झोले में कुछ ना था। छूकर उसने मुझे हीरा बना दिया, छूकर उसने मुझे हीरा बना दिया। आज जो कुछ भी हूँ मैं उसका शुक्रिया, आज जो कुछ भी हूँ मैं उसका शुक्रिया। ऐसे कैसे ऐसे बोल सकते हैं ऐसे, हाँ हूँ मैं जो हूँ मैं तेरे वचन से ही हूँ मैं, हाँ हूँ मैं जो हूँ मैं ऐसे से हूँ मैं। सारे संसार को मैं जीतता तेरे वचन से हूँ मैं कुछ नहीं मेरा सब कुछ तेरा ही है खुदा। मैं चलता राहों पर चलाता तू पिता, हाँ हूँ मैं जो हूँ मैं तेरे वचन से हूँ मैं। थैंक यू सो मच। अभिषेक सर, 5 to 6 स्टूडेंट्स का थोड़ा रिग्रेट आ गया शायद, उन सबके यहाँ वर्किंग टाइम कोई चल बात रहा नहीं, है। कोई बात नहीं। दे ऑल आर इन वर्चुअल मीटिंग, तो वो बोल रहे हैं मुझे। ठीक है ना मैम, बस हम लोग एंड ही करते हैं मैम। आई थिंक है ना, काफी अच्छा एक इंटरेक्शन रहा सभी के साथ, और सभी के कोऑर्डिनेशन में ये एक्टिविटी हम लोगों ने करी है। और फ्रॉम एंटायर द एलुमनाई सेल और फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, मैं जितने भी आज एलुमनाई यहाँ पे जुड़े थे सभी का शुक्रिया। आप लोगों से हम इसी तरह से आगे भी जुड़े रहेंगे। और डॉक्टर नीतू पलीवाल मैम का भी बहुत बहुत धन्यवाद, वो एंटायर टाइम हमारे साथ जुड़ी रही। दीप्ति मैम, आपके लिए भी बहुत बहुत थैंक यू। बसंती मैम और जो बाकी फैकल्टीज कॉमर्स से जुड़े हैं उन सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हम इसको कोशिश करेंगे कि आगे भी इस तरह की एक्टिविटीज हम प्लान करते रहें और एलुमनाई को बहुत स्ट्रेंथन करें, और ये कहीं ना कहीं एक बहुत पावरफुल नेटवर्क एक बनेगा और आने वाले समय में आरएनटीयू के स्टूडेंट को बहुत सपोर्ट करेगा। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग ऑन दिस एक्टिविटी, और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। प्लीज आप सब लोग अपना वीडियो ऑन करें एक ग्रुप फोटोग्राफ के लिए। रवि सर से मेरा अनुरोध है कि ग्रुप फोटो लें, ये यादगार रहेगी। और मैं जो अभी हमने एक ग्रुप बनाया है उसमें पोस्ट भी करूंगी, जिससे आप सबके पास भी यादगार के तौर पे फोटोग्राफ रहे। रवि सर प्लीज। आज मैम मैं रेडी हूँ, प्लीज ऑन करें सभी लोग अपना। मीरा आप ऑन कर लें इफ पॉसिबल। रवि सर आप भी तो ऑन करो। पवन, पवन सर, यस। अच्छा पवन सर इज ऑन द वे। ओके ओके, यस। Just a moment, please. Thank you all. Thank you. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Thank you, Ravi sir. Bye. God bless you. Bye. Thank you so much. विशेष ऑल ऑफ यू, जो आपके ड्रीम्स हैं आप लोग सब आगे उसमें बढ़े, खूब आगे जाएं। हम सारे टीचर्स की तरफ से, रविन्द्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी की तरफ से मेरी ये बेस्ट विशेस हैं। और इन फ्यूचर आप अपने से जूनियर्स को भी आगे लेकर आएं और हमारे साथ में इसी तरीके से जुड़े रहें, क्योंकि कहीं ना कहीं आप सबके एक्सपीरियंस हमारी जो यंग जनरेशन है या जो अपकमिंग बच्चे हैं उनकी बहुत काम आएगी। और अलंकृता, स्पेशली अलंकृता के लिए मैं ये लाइन जरूर बोलूंगी कि वो जो अभी तैयारी कर रही है उसमें लगन बहुत है और इन फ्यूचर आईपीएस ऑफिसर बन पाए। बहुत सारी शुभकामनाएं। तो बड़ा गर्व होगा कि एक बच्चा सीए है, कुछ की अपनी फॉर्म से है, अलंकृता हमारे यहाँ से आईपीएस ऑफिसर है। थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू बेटा।